In 1 minute, we are going to live. Okay, sir. I welcome our chief guest, Dr. Aruna Palta ma'am, our mentor, Dr. Prashant Srivastava sir, our keynote speaker, Dr. Ramesh Geeta Sinha ma'am, this webinar on opportunity education Madam, scenario. madam, we are live on YouTube. Yes. On the on challenges and opportunities of higher education in the scenario, the world is confronted with a striking different situation at every walk of life: education, economy, politics, foreign relationship, etc. To respond to these changes, it is essential that higher education must shoulder the responsibility to produce globally competent youth and continuously identify the challenges and opportunities in higher education so that we can contribute well enough in nation's growth and development. I request Dr. Nadia Ahmed, Principal Sandipani Academy, for welcome speech and program introduction. Dr. Nadia Ahmed. Sir, you are mute. मैम म्यूट है सर, उनको अनम्यूट कर दीजिए. Yes. नाजिया मैडम को भी अनम्यूट करिए. नाजिया मैम को अनम्यूट करिए. Yes, madam. Najia, madam. Thank you, Abha ma'am. A very good morning to all of you. आप सभी गणमान्य अतिथियों, विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार. मैं डॉक्टर नाजिया अहमद, प्रिंसिपल सांदीपनी एकेडमी, अछौटी, दुर्ग, इस संस्था की ओर से आयोजित आज के इस एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी वेबिनार के उद्घाटन के अवसर पर परम आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती अरुणा पल्टा मैम, कुलपति हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, इस वेबिनार के मेंटोर आदरणीय डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव महोदय, डीएसडब्ल्यू अधिष्ठाता छात्र कल्याण हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, हमारे मुख्य वक्ताओं के रूप में हमारे बीच में आमंत्रित एवं उपस्थित श्रीमान डॉक्टर रमेश चंद्र जी कोठारी जी, पूर्व कुलपति वीर नर्मद साउथ गुजरात विश्वविद्यालय सूरत से, तथा डॉक्टर संगीता सिन्हा, प्रिंसिपल सावित्रीबाई फुले गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चकिया चंद्रौली उत्तर प्रदेश से, हमारी संस्था संदीपनी एकेडमी के निर्देशक तथा इस वेबिनार के पेट्रन श्रीमान महेंद्र चौबे जी, हमारे संस्था के एडमिनिस्ट्रेटर श्रीमान विनीत चौबे जी, इस वेबिनार के आयोजक मंडल के सभी सदस्य एवं सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों जो भारत के विभिन्न प्रदेशों तथा विदेशों के सभी प्रतिभागियों एवं विद्यार्थी जन का आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वेबिनार में. इस वेबिनार के इंट्रोडक्शन जो हमारा टॉपिक है आज का वेबिनार का, उसके लिए मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. It's a national webinar on challenges and opportunities of higher education in the present scenario. The education system is one of the fundamental factors for the holistic development of the nation. An educated nation tends to grow and develop in all its aspects, includes industrial, social, economic, etc. Indian higher education system is the third largest in the world, and in India, as a developing nation, it is continuously progressing in the educational field. Higher education of India has a lot of challenges, equally has a lot of opportunities to overcome these challenges. And to make higher education system much better, it requires a constant discussion to identify the challenges and various opportunities in higher education among the academicians, professionals, researchers, professors, students, and the stakeholders, with the sole purpose of to transfer education system so that our country will be transferred from a developing nation to a developed nation by our combined efforts. In continuance of this webinar, I would like to introduction about our
Chief guest Dr. Aruna Palta ma'am. Dr. Aruna Palta ma'am is our Honorable Vice Chancellor of Durg University. She is a great educationist and a pioneer in her stream and has received several awards like from Honorable President of India for Outstanding Academic Achievement in 2008, Sangharshshil Mahila Award by Vakta Manch, Jeevan Sadhak Award by Yug Nirman Vidya Parishad, Shiksha Gaurav Samman by Rotary Club of Raipur, Lifetime Achievement Award by Kalinga University. She has penned down several textbooks, around 17 textbooks, and she has published more than 500 articles in renowned newspapers, magazines, and about 68 research papers in the referred national and international journals. In brief, I would like to say that she has provided her expertise in as a coordinator, chairperson, resource person in several refresher courses, orientation programs. She has been in several selection committees. She has guided several PhDs uh, and has also done many successful projects of the government and many more other achievements in the field of higher education. Here in this webinar, I would like to invite our respected Chief Guest Madam, our Honorable Vice Chancellor Ma'am, for addressing us by giving us her words of wisdom. Dr. Aruna Palta ma'am. Madam, please unmute your mic. I am sending you a request. Yes, ma'am, you are audible. Yes. Good Very good afternoon, morning ma'am. to one and all present in this webinar. I recognize the presence of Honorable Vice Chancellors present in this webinar, the academicians across the country, from the state, the learned principal of the college, the directors of the college, organizing committee, and above all, the attendees. Definitely, this webinar is the need of the hour, since all the areas of the country and across the globe are affected by this crisis condition. I want to tell you that all the 213 planets, all the 213 countries of the planet are affected by corona to a greater or lesser extent. The outbreak of the pandemic was all of a sudden, and no country, no society, and none of the groups were ready to face it. Like all other sectors, education sector is also deeply affected by this crisis condition. And as per UNESCO's calculation, 157 crore students from pre-primary to higher education were affected by the closure of their schools and their institutions of higher learning. If we talk about India, the figures are very high, 32 crore plus students. And for specific, for Chhattisgarh state, 25,000 plus students are affected by this pandemic condition. And if we talk about higher education of Chhattisgarh, more than 6 lakh students are affected by this pandemic. And as you all know, the conventional teaching is disrupted totally. And now we are thinking about the methods, like how to compensate the losses of the students. And then came the existence of online teaching and of virtual classrooms. And this is the method which nobody ever thought about, neither the teachers nor the taught. But now we have to practice it to such an extent that at least for this year, I think all the teaching classes
and all our practical classes has to be taken online only. Now, if we compare the online mode of teaching with the conventional mode of teaching, we find that definitely the traditional method suits us a lot, because there is a presence of the mentor, which is the motivator of the class also, the presence of the peer group, which can support the learner at all the times of needs. Definitely, we find it very easy to cope up with the traditional system of teaching and learning. And now think about the online mode of teaching: no peer group, no mentor, no motivation, and sometimes even poor connectivity of the devices and improper devices. They may lead to a high dropout rates also of the students. But at this time of disaster, there is no other alternative left. Now we are becoming used to it. Many universities, they are conducting their PhD vivas, their classes online only. In Durg University also, I feel proud to tell that 1500 videos were uploaded for the PG and UG classes, apart from the project work and even some practical classes also. The PhD coursework classes were taken online, and all of you know that we have organized the FDPs, the very important lectures, Indradhanush, through online mode only. And these online modes were applied both for the teachers as well as for the students successfully. And as it has been rightly said that karat karat abhyas ke jadmati hot sujan. So what we think is now we need more and more practice into online teaching and learning process, so that we can make our teachers comfortable as well as our students comfortable with online classes. The future of online education in India seems to be very, very attractive now. India is a very huge country with 1.3 billion population and with highest number of youth population also. So the scope of this online teaching further increases. In this fast moving and competitive world, a student now cannot just come for your traditional classes and keep on doing only one course. Now the students want to go for a job, to do certain other works, and along with that can join any online course to complete his education parts. So this shows that the need of online teaching is now increasing day by day. And looking into this, the government of India, they have permitted the top 100 NIRF colleges or institutions of higher learning to go with online courses. Previously, they have given permission only for 20% of the course to be conducted online, but now they have given the permission to all these top 100 NIRF ranking institutions to conduct all their courses 100% online. And I would also like to tell you that the enrollment rate of the students in online courses is increasing day by day. If we see the statistics of 2016, only 1.6 million students were registered for online courses. And it is expected that by 2021, that is within 5 years, 9.6 million students are going to register for these online courses. And now after disaster, I think this figure is going to raise more. So this example is enough to explain the significance of online education in countries like India, which is still considered to be technologically backward as compared to other developed countries. Now, if we talk about our own state, that is Chhattisgarh, which is a land of diversity with more than 40% forest cover and with all types of population, tribal, rural, urban, they are residing here. So challenges become even greater. So now some changes in teaching methodology needs to be incorporated in future teaching learning trends. At least after pandemic is over also, I think that all the colleges, they should continue with online teaching learning process at least 20%,
so that the teachers and the taught both are used to this teaching technology of online teaching. Even the B.Ed colleges, I request that they should start. They are teaching methodology to the teachers. They should start teaching this online teaching methodology to the teachers also, so that to their students who are going to be future teachers, that they should be comfortable with this online mode of teaching learning in future also. So here I end with a very positive quote of late Dr. APJ Abdul Kalam, our past president, who said that man needs challenges to enjoy the success later. So I request the academia to come forward to convert the challenges of this crisis period into opportunities. And again, before ending, I would like to quote Jimmy Dean, who said that I cannot change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach to my destination. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Chhattisgarh. Thank you very much, Honorable Vice Chancellor Ma'am. आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना अच्छा और सारगर्भित उद्बोधन दिया. As we all understand that it is now a need to practice more and more and to adjust to the present scenario. And the solution, one of the solution is that we have to try more and more, start to more and more online classes. And it is rightly quoted by ma'am that man needs challenges to success in the academia. Without getting any challenges, we cannot find how successful we are. And now, continuing to our next stage of our webinar, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी की अगली कड़ी की ओर अग्रसर होते हुए मैं अपने वेबिनार के मेंटोर श्रीमान प्रशांत श्रीवास्तव जी का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. Mr. Prashant Srivastava, an eminent personality, a renowned person in the field of education, is presently appointed as DSW, Dean Student Welfare at Hemchand Yadav University, Durg. He has expertise in geology subject. He has received Best Teacher Award in 2020 from the Institute of Scholars, Bengaluru. Also received DST Young Scientist Award in 1995. Received Rajiv Gandhi Excellence Award in 2013, and he is also a recipient of Commonwealth Academic Staff Fellowship in 2008. Srivastava sir has penned many research papers that are more than 40 in national and international research journals, and also has completed 2 major and 3 minor research projects. Being a renowned educationist, he has delivered various invited talks, lectures in several IITs, IIM, Presidency College, and many more. He is also an expert member of the various organizations for selection in UPSC, MPPSC, Indian Railways, etc. Here in this webinar, as a mentor, I would like to request respected Mr. Prashant Srivastava Sarji to give us some of his views regarding the webinar topic and to address us. Mr. Prashant Srivastava. Good morning to all of you. Thank you so much, Najia ma'am, for a nice introduction. I don't deserve that. That is your affection towards me. Respected Mahendra Chaube sir, who is a director of this college, Principal Najia Ahmed madam, Convener Dr. Abha Dubey, Madam Sandhya Pujari, and our respected Honorable Vice Chancellor Dr. Aruna Palta madam, and Dr. Kothari, ex-Vice Chancellor from Surat, and Madam Sangeeta Sinha from Chandauli. She is both of your resource persons are very well known in the country. Madam Sinha and Kothari Saab is also very well known to all of us. He is a very good speaker. And all learned staff of Sandipani Academy as well as the participants. First of all, I congratulate Principal and her staff for choosing such a wonderful topic, which is a need of the hour and which is very relevant to the present scenario. As our Honorable Vice Chancellor Dr. Palta Madam was telling, that the challenges and opportunities, this is a phenomena which is applicable to every segment of our life.
not only in higher education, but in our every segments of our life, you can see there are a lot of challenges. It depends on us how we can convert challenges into the opportunities. And this is mainly based on our attitude. In what way we can see anything? A person can say that the glass is half empty, or other one can say glass is filled with half water. So that depends upon our attitude, he, how we can see things in our changing world, as well as the higher education scenario also, because all of us are connected with the higher education and the present challenges, and with the students as well as our young faculty members also. As Palta madam was telling that during the lockdown period, almost 5-6 months are over, and it was very difficult because all the colleges, the schools, they are closed, and how we can connect each other, and the students also, how can we connect the students with their subjects and all that. And for that, the online teaching was one of the method by which we can connect teachers with the students, and teachers with the principal, and principal with the management, and like that. So it is a very difficult time at that time was, and our senior faculty members who were not very well acquainted with the video lectures making or the audio lectures making, and this was the phenomena which was new for both teachers as well as the students. And as I was informed that many abroad participants are also joined in your webinar, as well as the participants from the India also. So okay, I will speak in a mixed language because some Indian participants and participants from the Chhattisgarh also are here. Okay, then no problem. I just got the message. So आप देखिए कि जो आपका वीडियो लेक्चर बनाने का था, शुरू में लोगों ने उसका काफी अपोज किया मतलब उन्होंने कहा सब बेकार है, इस चीज का कोई मतलब नहीं, बिकॉज उनके मन में एक भय था कि हम इसको कर पाएंगे कि नहीं, बिकॉज दे आर नॉट एक्वेंटेड विद द टेक्नोलॉजी। पर धीरे धीरे अभी जैसे पलटा मैडम बता रही थी कि दुर्ग विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे 1500 वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिए गए। तो वो 1500 वीडियो लेक्चर्स किसने अपलोड किया? हमारे जो रेस्पेक्टेड प्रोफेसर्स ने। तो शुरू में किसी को ज्ञान नहीं था, तो एक भय था। हमको जब तक भय होता है, जब तक हम उस चीज के बारे में जानते नहीं, और जहां हम उसके बारे में जानने लगते हैं तो उसके बाद हमारा भय समाप्त हो जाता है। तो आपको याद होगा जब शुरू में एटीएम मशीन्स लगी थी, तो जो हमारे सीनियर कलीग्स थे वो लोग नहीं जाते थे, वो घबराते थे कि कहीं वो उस कैबिन के अंदर बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, कहीं हमारा पैसा नहीं निकला तो क्या होगा, कार्ड अंदर चला जाएगा तो क्या। और बहुत सारी घटनाएं होती भी थी कि वो कार्ड जो है वो अंदर चला जाता था, फिर बैंक मैनेजर से हमको कंसल्ट करना पड़ता था, लाइक दैट। तो ये चीजें जब तक जो है वो हम उनसे एक्वेंटेड नहीं होते, तब तक हमारे मन में भय रहता है। और जैसे ही हम उसको जान जाते हैं, आजकल आप देखिए मोबाइल में हम इतने यूज्ड हो गए कि किसी को भी मोबाइल से भय नहीं लगता। लेकिन पहले शुरू में होता था तो जो सीनियर लोग थे वो एकदम छूते नहीं, केवल कॉल अटेंड करते थे और बस उसके बाद वो कोई भी चीज को, उस मोबाइल का उपयोग नहीं करते। तो ये डिपेंड करता है कि हम किसी चीज से घबराते हैं या हम किसी चीज को उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स भी कभी उन्होंने ऑनलाइन क्लास नहीं की थी। दूसरी बात यह थी कि क्लासरूम में जब हम रहते हैं तो हमारा कंट्रोल रहता है। यहाँ पर बच्चा घर में है, उसने माइक ऑन कर दिया, अपना वीडियो ऑफ कर दिया, आराम से चल रही है। तो लाइक दैट इस तरीके के फिनोमिना भी देखने को मिलते हैं। पर यह डिपेंड वही करता है कि वो बच्चा उस क्लास को या उस ऑनलाइन टीचिंग को किस प्रकार से लेता है। तो ये हमारे हायर एजुकेशन में बहुत सारे जो चैलेंजेस आए हैं और उसी के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी आई। आपने देखा होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी ये आपसे रिक्वेस्ट की थी कि cg.nic.in में आप जो है वो वीडियो लेक्चर्स अपलोड करिए, पीडीएफ अपलोड करिए। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे दुर्ग विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों ने बहुत अच्छे से जो है वो वीडियोस बना करके और पीडीएफ नोट्स बना करके अपलोड किए, और बड़ी संख्या में और बड़े क्वालिटी। तो इसके लिए मैं आपके सभी जो पार्टिसिपेंट, हमारे बहुत सारे प्राध्यापक साथी जुड़े हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने विश्वविद्यालय का सहयोग किया। फिर आप देखिए कि एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, जैसे अभी पलटा मैडम बोल रही थी कि ट्रेडिशनल क्लास से ऑनलाइन क्लास की तरफ। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके की भी एक्टिविटीज आएंगी, और अब हमको धीरे धीरे उसको
अंगीकृत करना पड़ेगा, उसको हमको स्वीकारना पड़ेगा कि भाई अब टेक्नोलॉजी से हम जो है वो धीरे धीरे उससे परिचित हो, अवगत हो। और आप देखिएगा कि बहुत सारे कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में अब ऑनलाइन कॉलेज को बड़ी सहजता से, ऑनलाइन टीचिंग को बहुत सहजता से लिया जाने लगा। आपको याद होगा कि जब शुरुआत में कोई बच्चा मोबाइल लेके कॉलेज आता था तो हम लोग उसको जब्त कर लेते थे, उसको बैन करते थे, और उसको कभी 500 कभी 1000 रुपए ऐसा फाइन भी लगाया जाता था महाविद्यालय में कि तुम मोबाइल लेके कैसे आ गए। इवन स्कूल्स में बस्तों के, बच्चों के बस्ते चेक होते थे कि कहीं मोबाइल या कोई ऐसी चीज तो नहीं, और जब वो पकड़ाता था तो उसका जब्त किया जाता था, गार्जियंस को बुलाया जाता था। लेकिन आज आप देखिए कि वही मोबाइल जो है वो आपके पूरे ज्ञान का भंडार का स्रोत है। और गवर्नमेंट कह रही है क्लासरूम्स में, अब स्कूल से मैसेज आते हैं कि भाई ऑनलाइन आपका होमवर्क आपको दिया जा रहा है, आप करिए, आप अटेंड करिए। तो ये देखिए एक ऐसा चेंज है कि जिस चीज को हम बैन करते थे आज हम ही कह रहे हैं उसको कि नहीं नहीं आप इसका उपयोग करिए। और जहां तक अपॉर्चुनिटीज की बात है, मैंने कई वेबिनार्स में आपको इस बात की सूचना दी थी और एक बार पुनः आपको दोहरा रहा हूं कि ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम पलटा मैडम ने दो जो हमारे आईआईटीज हैं, आईआईटी मुंबई और आईआईटी खड़गपुर, इन दोनों से हम लोगों ने जो है वो समझौता किया है, हमारा एमओयू हुआ है। और वहां नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी इन आईआईटी खड़गपुर एंड इन मुंबई देयर इज अ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, बोथ ऑफ लाइब्रेरीज आर फ्री फॉर यू। आप लोग जो है उसका बहुत फायदा उठाइए, केवल आपको उसको रजिस्ट्रेशन कराना है, पर्टिकुलरली फॉर द बीएड कॉलेज, एज यूर कॉलेज इज टीचिंग बीएड स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली, तो उनके लिए बहुत सारी सामग्री मौजूद है। जो आप प्रोजेक्ट बनवाते हैं, बीएड के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं पुराने, और बीएड की जो पाठ्य सामग्री स्टडी मटेरियल है, दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड इवन यू कैन डाउनलोड दैट एंड यू कैन फोटोकॉपी दैट आल्सो। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अपने यहाँ से बहुत कम लोग जो है वो उसका उपयोग कर रहे हैं। केवल जो साइंस कॉलेज दुर्ग के स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज दे आर अवेयर, वही लोग जो है वो 215 स्टूडेंट जो है वो वहां पर रजिस्टर्ड हुए हैं आईआईटी खड़गपुर में भी और आईआईटी मुंबई में भी। तो दे आर गेटिंग, और इसलिए आप देखिए कि उस कॉलेज के बच्चों का सिलेक्शन बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, बहुत सारे एग्जाम्स वो क्लियर कर रहे हैं। तो मेरा आज जो आपके पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जब विश्वविद्यालय आपके लिए प्रयास कर रहा है तो आप लोग उसका जरूर, आपको एक सिंगल पाई नहीं लगना है, और इतना हाई स्टैंडर्ड का मटेरियल है, चाहे वो आईआईटी मुंबई की डिजिटल लाइब्रेरी हो, चाहे आईआईटी खड़गपुर की नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी है। और उसमें बहुत सारे, चाहे हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, आपके जो पुरातत्व वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी सामग्री है। बीएड के लिए तो बहुत ही अच्छी सामग्री है जो आईआईटी मुंबई की, यदि आप देखेंगे पर्टिकुलरली एक बीएड का सेक्शन है। तो जो हमारे यंग टीचर्स हैं जिनको स्टडी मटेरियल नहीं अवेलेबल हो पाता है या जिनको उतना अभी अनुभव नहीं है, वो जरूर से आप फायदा उठाइए। वो नेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स के बनाए हुए लेक्चर्स हैं, आपको बिल्कुल रेडीमेड वो लेक्चर्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उनको जब आप क्लासेस में पढ़ाएंगे तो दैट चैलेंजेस जो भी आपके सामने है, दैट यू कैन कन्वर्ट इनटू द अपॉर्चुनिटी। इसी तरीके से आप देखिएगा कि यूजीसी की जो साइट्स हैं उनमें उन्होंने एमएचआरडी ने, अब तो वो शिक्षा मंत्रालय नाम हो गया है, आप देखिएगा कि उन्होंने मूक्स, स्वयं, ईपीजी पाठशाला, इस तरीके के बहुत सारे डोमेन्स बना के रखे हुए। उनके भी आप लेक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे मैं अभी तक कहाँ था। एकदम रेडीमेड और वर्ल्ड क्लास नोट्स दे आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। यूजीसी का जो ज्ञान दर्शन कार्यक्रम है वो आपके लिए हिंदी में बहुत सरल शब्दों में बड़ी बड़ी बातों को वो लोग समझाने का प्रयास करते हैं। दुर्ग विश्वविद्यालय भी आप लोगों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहा है, जैसे ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम बता चुकी हैं। उसका पर्पस हमारा यही है कि जो पेंडेमिक पीरियड में बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर है, बहुत सारे लोग मानसिक रूप से परेशान है, तो उनको हम सब्जेक्ट से जोड़ें, आपस में वो रचनात्मक गतिविधियां करते रहें। तो हम लोग ने एफडीपीज कराए, आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स करवाए, पीएचडी स्कॉलर्स के लिए जो है वो वर्कशॉप कराया। अभी हम लोगों ने गणेश जी की प्रतिमा बनाने, मिट्टी की प्रतिमा बनाने और पोस्टर कंपटीशन कराया। उसके पहले बेस्ट प्रैक्टिसेस का कंपटीशन कराया कॉलेजेस के बीच में। और मुझे बहुत खुशी है कि मतलब हंड्रेड्स में जो है वो एंट्रीज आई। और कभी आप लोग को मौका मिले तो देखिएगा विश्वविद्यालय में आके जो कॉलेजेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आए हैं, उन्होंने हाउ दे हैव सबमिटेड देयर प्रपोजल। क्योंकि आपका आगे अभी नेट का एक्रेडिटेशन भी होगा, तो किसी चीज का प्रस्तुतिकरण एक बहुत मायने रखता है कि छोटी सी बात को कितने ऑर्नामेंटल ढंग से आप प्रभावशाली तरीके से उसको प्रस्तुत करें। तो ये आप लोग भी इसको जानिए और उन चीजों में भाग लेने का प्रयास करिए। अभी शिक्षक दिवस आ रहा है, टीचर्स डे 5 सितंबर को, उसमें भी हम लोग एक ऑनलाइन कंपटीशन रखने जा रहे हैं, आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा।
तो इस तरीके से जो केवल हम बहाना करें या कहें कि अरे भाई पैंडेमिक पीरियड चल रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ बंद है, तो सब कुछ बंद है, दैट इज फिजिकली जो आपके स्कूल कॉलेज जरूर बंद है, पर आप ऑनलाइन और दूसरे तरीकों से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि अभी आपको कॉलेज नहीं जाना है, दिन भर आप फ्री हैं और दिन भर में आप समय का सदुपयोग कर लें। और इसके लिए मैं आपकी ऑनरेबल प्रिंसिपल नाजिया मैडम की तारीफ करूंगा। फुल टाइम वो किसी न किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में लगी रहती है। जब मुझसे बताती हैं कि सर आज हमने ऐसा किया, कि सर हमने ये कोशिश कर रहे हैं, तो आई फील वेरी हैप्पी कि उस पीरियड को जो है वो पॉजिटिवली यूज कर रही। तो हम सभी के लिए वो एक उदाहरण है। इसी तरीके से आप देखिएगा कि हम लोग ने ऑनलाइन असाइनमेंट्स, उसके बाद इंटरनल टेस्ट, और जैसा भी मैडम ने कहा हमारा जो CSVT है, स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वो लोग ऑनलाइन PhD वाइवा भी करा रहे हैं। अब तक वो लोग 33 PhD वाइवास करवा चुके हैं ऑनलाइन। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि उन अपॉर्चुनिटीज को हमको ग्रैब करना है। हम हमेशा अपनी कमी को ढांकने के लिए हम क्या कर देते हैं, दूसरों पे थोप देते हैं कि भाई अब पैंडेमिक चल रहा है, घर से बाहर निकलना बंद है, लोग बोल रहे हैं कम मिलो, कम जाओ, स्कूल मत जाओ, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये हमारी कमी। अदरवाइज आप देखिए उसी बंद में, उसी सब कुछ उसमें सारी गतिविधियां चल रही हैं और लोग जो है वो कितने अच्छे से अपना जो है वो पॉजिटिव दे रहे हैं। आज ही आपने अखबारों में पढ़ा होगा, एक स्टूडेंट ने जो है वो अल्जाइमर की मेडिसिन बनाई है काली मिर्च और हल्दी के माध्यम। हम अपने भिलाई की जो लड़की है, और उसको नेशनल लेवल पे 150 पार्टिसिपेंट्स के बीच में फर्स्ट प्राइज हुआ। तो पैंडेमिक उसके लिए भी है, घर उसके लिए भी बंद है, जितनी कठिनाइयां हमको है वो कठिनाई उस बच्ची को भी है, लेकिन उस कठिनाई के बीच में भी आप देखिए ऑल इंडिया में फर्स्ट आना और अल्जाइमर की जो दवा है वो बनाना, ICMR उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, तो कुछ तो उसमें प्रयास किया होगा। तो हमको इस तरीके की कुछ ना कुछ चीजों से पॉजिटिव लेना है, और जितने भी आपके जो चैलेंजेस हैं उनको चैलेंजेस ना रखते हुए उनको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना है। तो आप सभी ने मुझे सुना और यहाँ आपके साथ अपने व्यूज शेयर करने का मौका दिया। मैं संदीपनी एकेडमी की पूरी फ्रेटर्निटी को, उनकी ऑनरेबल प्रिंसिपल को, आभा दुबे मैडम को, संगीता पुजारी मैडम को, हमारे दोनों जो ऑनरेबल रिसोर्स पर्सन वेट कर रहे हैं बोलने के लिए, उनको आप ज्यादा सुनिए क्योंकि वो बहुत अनुभवी हैं। मैडम संगीता सिन्हा बहुत जानी मानी वक्ता हैं, और कोठारी साहब का तो कल UGC में और सब जगह नाम है, सूरत के आप वाइस चांसलर रहे हैं। तो आप लोगों ने एक तो स्पीकर्स बहुत अच्छे चुने जिनको कि वास्तव में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। टॉपिक बहुत अच्छा चुना, और मौसम भी बड़ा सुहावना है। आप देखेंगे बाहर की कोई तेज धूप नहीं, छत्तीसगढ़ में बहुत तेज धूप रहती है। इट्स लवली वेदर। सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। थैंक यू सो मच। Heartfelt thank you to Prashant Srivastava sir for your address. It is very resourceful to us for your address is very resourceful, as we came to know that how we are converting these challenges which is present in this scenario into opportunities. Like you have said that we are welcoming the paradigm shift. It is rightly said. We are truly shifting our paradigm and we are changing our life. What earlier we are using mobile phone for was entertainment purpose. Now we are using for our educational purpose, for getting us professionally more qualified, and for we can say that we are now more in contact with the students, apart from physical जो हमारी क्लासरूम्स होती थी, उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो अब हमारे बच्चे अपने घर पर भी बैठ के हमसे बातचीत कर सकते हैं, हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, दे कैन क्वेरी अस। और जो हम देख रहे हैं कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके हर एस्पेक्ट में जो हम चैलेंजेस को देख रहे हैं उनको हम अपॉर्चुनिटीज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं और उनको हम उसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। जैसे कि आपने हमें बताया कि IIT मुंबई, IIT खड़गपुर से हमें वर्चुअल और डिजिटल लाइब्रेरी से कनेक्शन हो रहे हैं। मूक कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं, हम अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ा सकते हैं। हम ऑनलाइन हमने असेसमेंट की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जो कि हम सोचते थे कि अभी तक रिटर्न असेसमेंट की तरफ ही हम जोर देते थे, अब हम ऑनलाइन असेसमेंट की ओर जोर रहे हैं, चाहे वो असाइनमेंट सबमिशन हो या प्रोजेक्ट सबमिशन हो या इंटरनल मार्किंग्स हो। उन सब में हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन को हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, इंटरनेट और अदर यूज को हम देख रहे हैं। तो जो मोबाइल आजकल पहले, आज से पहले या इससे पहले
ये जो प्रेजेंट सिनेरियो, उसके पहले जो हम मोबाइल बच्चों से कहते थे कि आप पूरा दिन मोबाइल पकड़ के बैठते हो और डांटते हैं, अब हम देखते हैं कि बच्चों को हम थमाते हैं कि बेटा आपकी क्लास है, अब आप मोबाइल को देखिए, और मोबाइल उनके हाथ से छूटता भी नहीं है। पूरा दिन वो लोग कुछ कभी क्लास अटेंड करते हैं, कभी नॉलेज गेन करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हुए इस वेबिनार की अगली कड़ी की ओर चलते हुए मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर आभा दुबे मैम को for taking this webinar for the further proceedings of the national webinar. Dr. Thank you Abha so Dubey, much. ma'am. Thank you so much, Ma'am. ma'am. What is education? Is it book learning? No. Is it diverse knowledge? Not even that. The training by which the current and expression of will are brought under control and become fruitful is called education. It is aptly said by Vivekananda, Swami Vivekananda. And with this practice, will become again the Vishwa Guru, and we will take the Bharat, the nation, into the height of success. Before commencing the session, I would like to request all the participants to post your queries on chat box of YouTube so that we can try to solve your queries. Now, here we begin our first session, and I would like to introduce to you all Dr. Ramesh Chandraji Kothari. I can say in brief that he is the repository of knowledge. He is former Vice Chancellor of Veer Narmad South Gujarat University and former Dean of the Maharaja Sayajirao University of Baroda. He has done many research work projects. His 250 theoretical conceptual research papers have been published in various Gujarati, Hindi, and English journals in India and abroad. About 25 of them have been appeared in the book form. He is working in various editorial boards, advisory boards like GYAN, International Journal of Education for Human Services, BRICS, Journal of Education Research, a peer-reviewed international journal, and many more. His 20 books have been published from 90 to 2012, and we didn't have get the data of 2012 to 2020. He has reviewed 5 books. He is members in 25 prestigious academic administrative organizations. He bags an enormous number of awards and achievements in field of education and mathematics. Sir, you are really the repository of knowledge, and we are honored to have you as a keynote speaker. And I welcome you on behalf of entire Sandipani Parivar. And I would like to request you to share your thoughts and showers on us the treasure of knowledge. Sir, please. Sir, kindly unmute your mic. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. You are audible, sir. सबको नमस्कार. Your Honorable Vice Chancellor of Hemchand Yadav University, Honorable Dr. अरुणा जी, आपके मेंटर्स लिखा है DSW, Honorable Dr. Prashant Srivastava जी, very dynamic principal as I heard, Dr. Nazia Ahmed, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, that is Dr. आभा दुबे. और भी स्पीकर्स हैं यहाँ, डॉक्टर संगीता जी फ्रॉम सावित्रीबाई फुले गवर्नमेंट पीजी कॉलेज यूपी, रमाकांत प्रसाद जी भी है, होस्ट कर रहे हैं, and other delegates. Well, it's a pleasure to be with you on this occasion. You had a very good name also, Sandipani Academy. तो गुरु शिष्य परंपरा वाला है. Now,
काफी चीजें बताई गई कि वे हायर एजुकेशन में क्या क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए. I will begin with my talk with one thing. In 2000, आज से exactly 20 years before, एक रिपोर्ट आया था, रिपोर्ट ऑफ हायर एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज. नाम था रिपोर्ट ऑफ हायर एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, पेरिल एंड प्रॉमिस इन 2000. एक सेंटेंस उसमें लिखा गया था कि हायर एजुकेशन इज नो लॉन्गर ए लग्जरी, इट्स एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. हायर एजुकेशन इज नो लॉन्गर ए लग्जरी, इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. पहले हम मानते थे कि कौन जाएगा हायर एजुकेशन में. तो देर आर वेरी फ्यू. I think if you see the enrollment also, it was 10%, then 12%. Somewhere I read it is 18%. Other day I read it is 21%. When I was going through the draft, I read that it is 26%. And now it is said that by 2035, it should reach to 50%. That is our target. तो काफी opportunities है हमारे पास कि 2035 तक we have to go for 50% of students should go for higher education. PhD earlier it was also not so common. Now everybody is PhD. Even school principals are also expected that they should go for a higher qualification, because while last week only I was talking to some principals about the role of leaders in quality development. Then it is written that qualification, postgraduate qualification and higher qualification. So many of them were PhDs. And surprisingly, when once I was conducting the interviews with UPSC, 23 candidates were there for the post of the principal, and all 23 candidates were PhD. All 23 candidates were women, women empowerment. All 23 candidates have 2 master degrees. Many of them have more than 2, but minimum 2 master degrees, PhD, and fortunately all 23 were women. So that is the future of this country. That is the future of higher education. So nobody should be pessimistic for this. We should be optimistic. Here also you can say that Vice Chancellor, Madam, Principal, Madam, HOD, Madam, and another HOD is also Sin Sandhya ji. All are women. So that's the future of this country. I have a great hope for this. Now in higher education, everywhere we are using one word and we are listening one word. Higher education को overhaul करना है. We should overhaul the higher education. We have to restructure the higher education. We have to revamp the higher education. We have to create world-class education. I will be coming to that. What is world-class education? Now, multidisciplinary higher education. Multidisciplinary higher education शुरू करना चाहिए. वो क्या है? आप लोग हैं, पता नहीं सांदीपनी में क्या क्या चल रहा है courses. But we want to have not only education. We will have a department of psychology also. He will come and teach our educational psychology. He will teach us adolescent psychology. Like that, people are together. So a pandemic, this COVID, we are not able to still search for a vaccine. But we have to be together. How? Medical faculty, I want in my premises, people from medicine. I want people from pharmaceuticals. I want people from chemistry. I want people for biochemistry, microbiology, zoology, and botany. If these people are together along with the agriculture discipline, and if they try, instead of sitting in isolation in my department and my college and my cabin, no, all these people, they have to come together, and that will be a composite college that we will call as a multidisciplinary university or multidisciplinary faculty. So this is what is needed, and that's now we have an opportunity because government is also trying on that line on. So they say world-class education. Second, our challenge is that we are not familiar with what are our objectives of higher education. Other day I was reading a journal from Hyderabad, EduTrack, and so many people had given their thoughts about objectives. Our honorable former President Abdul Kalam had also said something. Present Prime Minister Narendra Bhai had also said something. And so many, they have given their
thoughts about the objectives of higher education. So everybody, if they talk, then I think list is so exhaustive कि आपको पता नहीं चलेगा कि which objective we are supposed to achieve. So first of all, the great challenge before us is to finalize our objectives. That with higher education, when at least you will complete your graduation, when you will complete your post-graduation, when you will complete your master PhD, what objectives, what are the learning outcomes? We talk a lot about the learning outcomes, but outcome-based learning, that is also there. So sessional plan, at least I am happy to share that Faculty of Management Studies has started sessional plans. I had experience of teaching them also for 2 years, research. They have their sessional plans that this 1 hour I will be doing this. And what are the learning outcome? That also clearly spell out. So in India, what needs to be done from higher school education, we talk a lot, but in higher education, what do we want to do? People say we want to go for critical thinking, we want to go for creative thinking, we want to go for proper communication skill. Nowadays, another word has come, soft skill. And it has changed my mind also. Otherwise, I was found with Bloom taxonomy only that what is skill? Sharpening a pencil to operating the higher level gadgets. That is the skill. So it's with the psychomotor domain. But now many things had come here. Even the positive skill, positive attitude, communication, problem solving, creativity, cultural literacy, global outlook, teamwork, ethical reasoning. These are the now learning outcomes expected from higher education. It is there, right, in primary education also. Even in class, you can say 1, 2, 3, 1, 2, 5 years, they say critical thinking should be there, creative thinking should be there, ethical reasoning should be there, and that will only help to develop outstanding employee. And communication skill is very much important. I don't say that English mein hi baatein karo, Hindi mein bhi baatein karo. That should not be wrong. So first of all, hamari pehli challenge hai, we should finalize our goals that at when a student gets PhD, what he is expected to do. Faculty wise, you can have a separate thing. When he is holding a master degree, what are the common things he is expected to know? And when he is from the bachelor, what are the common things he is expected to know? ये सब तय कर लेना चाहिए. कौन करेगा? I think it should be nationally done, but आपकी institute में भी आप कर सकते हैं. Now, what is the scenario of higher education? If you refer to the a good document is coming now, All India Survey of Higher Education. Then what qualitative and quantitative expansion? I will be talking here about the quantitative. Quantitative क्या हमारे पास कितनी universities है? ये report में मैंने पढ़ा 903. And similar type of lecture offline I was giving in Jammu, MIER College. I heard that 983 universities were there. Morning I received a call from Mumbai that, sir, now we are having one more university. So I said it is 984. Other day I heard that in Gujarat there are 10 more universities are given recognition by the government of Gujarat. So now every time I'm wrong, I cannot give you the exact figure, but now we can say we have 1,000 universities in India. And earlier, National Knowledge Commission said that if you want to proceed in this way, then we require 1,500 universities in India, right? 1,005. So that's a great challenge. Colleges wise also, I think while going through the report of NEP, National Education Policy, 50,000 colleges are there. 15 women universities are also there. In India, we have 15 women universities. Private universities are, I think, more. There are more than 350 private universities. Open universities are there. Within state also, we have open university. 14 central university. One open central university is also there. And many other, you can say, open university started. Central university, earlier we have Banaras Hindu University, Jamia Millia Islamia University, or Aligarh Muslim University, Delhi University, and JNU. That's all. Now each state has a central university. I think Chhattisgarh may be central university hogi, Bihar may be hai, Gujarat may be hai. So these central universities will be there. And dual mode universities are also there that we have to promote, because both your former speakers said that we have to go for this type of things.
In Tamil Nadu also maximum such universities are there. And you see that about 80% students are in our government aided university. 67.3 students are in private universities. Out of them also, if you say total, 58% male students are there and 42 female students are there. National policies emphasize on equality also, gender equality. So here, I think this is another challenge, that more and more girl students should enroll to the higher education. That is a challenge for that, and opportunity will be there from that. So PhD is also, PhD scenario is itna acha nahi hai, PhD scenario, because you know in 2017 only 34,400 PhDs were awarded, right? And out of them, 20,000 or more by male and 14,000 by female. So PhD, that is also because it is made compulsory, so quality has gone down. So this is also a great challenge to strengthen the research, right? Now, there are documents, they have identified our limitations also. Higher education expansion, why you see many universities are there. I saw a university near you, I think Ghaziabad or somewhere. 1,800 students were there. And smallest university, if I find, that is in our Gujarat also, we have Children University. Only, you can say, concentration is on Children University, where 300 students are there. IIT, Indian Institute of Teacher Education. Earlier they have less students, but now they have expanded with the affiliated colleges. But more and more universities are needed. But along with that, what are our limitations? What are our shortcomings? Resources are limited. हमारे पास इतना resources नहीं है. How to go about it? Private, they had a good resources, I have seen. And one of my study, it's not yet submitted. It says that so far infrastructure is concerned, in NEC guidelines we are studying that in higher education, especially in colleges of teacher education, the resources are very good, well maintained in private colleges. To provide a social base, wherever we go, we have to provide a social base. Government has also encouraged private organization, private industry, big business house, they had also started. So now new trend is also coming now. Remember that many private organizations, business organization, उनने खुद की यूनिवर्सिटी शुरू कर दी. It started. हमारे वहाँ GSFC है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन. They have their own university. Because why? Sometimes they do not have faith in your quality. So that's why they say that next year we need 30 to 40 managers in a variety of the fields, finance manager, marketing manager, and all others. So why not to give admission to such people, and we will prepare them accordingly, and we will establish a close link with the industry. So experience is very much important here. Experience, internship in colleges of teacher education, we have internship, but all other places internship is not there. Because 12 कॉमर्स का लड़का एक मनी ऑर्डर फॉर्म भरने के लिए उसको आता नहीं है. दिस इज ओल्ड एग्जांपल. बिफोर 20 years, वन एक ग्रांड माँ ने रिक्वेस्ट की एक बच्चे से कि भाई ये मेरा मनी ऑर्डर फॉर्म भर दो ने भैया. वो लड़का बोला कि मैं तो मनी ऑर्डर कभी नहीं करता, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मेरे पिताजी मनी ऑर्डर मुझे भेजते हैं, तो वही जानते हैं. तो 12 कॉमर्स का स्टूडेंट, if he is answering in this way, that is our education system. So we have to be very careful. But this is new trend that Jindal has also started university. I don't know MET वाले क्या करते हैं, कोई business house है, but many private universities are coming in this way. मुझे लगेगा कि मेरे business में I want this many percent, ठीक है. If I had a school, multiple schools or a group of schools, I will start my own colleges of teacher education and I will train them. And you see that lot of authentic learning experiences are given to them. Remember the word, this is very nicely used in the documents of world-class education. Authentic learning experiences, which we are always missing. In teacher education also, the day we start bombarding about educational psychology and philosophy and national goals and everything. But I say, if you want to provide them authentic learning experience, I will say that 1 week you orient them about education system in India. पूरा 1 week कर लो, then आपको उसको group बना दो, 5 के group में, let them go to variety of schools.
एडेड में भी जाने दो, 5 दिन एडेड में जाने दो, 5 दिन प्राइवेट में जाने दो, गवर्नमेंट भी है। हमारे गुजरात में एक ट्रेंड ऐसा है, कई जगह मैंने देखा कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, हमारे गुजरात में प्राइवेट स्कूल्स भी है, aided school bhi hai. They are given, but their infrastructure and everything is maintained by private trust. But all teachers, they are under the scheme of grant in aid. So their salary is given by the government, and some maintenance grant is also given. And other is only government school, where the teachers, if they pass higher examination, they will get promotion also, and they will get transfer also. Otherwise, aided people, they will not transfer. Private people, they will not be transferred. So this is the system that now industry people or big house, business house, they had also started university. So Hamari university mein we have to think of a quality, otherwise we will be in trouble, right? Then profit, another, the profit motive is also encouraged. Profit motive is also encouraged. It is there. As a result, getting qualification, higher qualification and higher education is not that easy. If in government aided colleges, you will give, I think in my course, hardly we have 5,000 rupees per year. That is the fee. And now if you go to private B.Ed, 50,000. Class attend karna hai 50,000. Class attend nahi karna hai 80,000. These are the equation set up. So profit make, but how to encourage? Because early everybody will not be, it's not easy for everybody to enter into this private institution. Sometimes we find that teachers are also helpless. Sometimes exploitation of the teacher is also there. Parents and students both are cheated, financially as well as psychology also. Selling of the fake degrees, that has also come. Fake degrees are also given, and so purpose is not served. So ultimately, what are our challenges? If you see, our challenge is, first challenge I said that we have to take the higher education enrollment will be 50%. Right? And nowadays, you see how many students are entering to the arts, faculty of arts. I think about, the data is quite old, 2011-12, 39% students are enrolled in arts, 18% in science. Somehow this needs to increase, science, because now there is no research in fundamental science. Basic, pure science researches are now being neglected, and that's why this COVID and all other things have come. So we have to go for that. Commerce and management, of course, these two had been merged, but that is 17%, only 17. उसमें भी management आ गया, management तो MBA वाले हैं वो. Education hardly 3%. Then engineering and technology 16%. Medicine 3.85, so nearly about 4%. Veterinary science very less, 0.16. This needs to be increased for veterinary. India, when we say that India is a land of agriculture, we should think. Law 1.9 and agriculture 0.55. So these are the challenges that you try to analyze this data and see why less and less people are there in veterinary science, why institutions are not there, or is it so costly? You try to analyze this, a short analysis be done. So this is how agriculture and all other things are there. Now, if you see that we talk of world-class education also, and at the same time, what we are expected to do, or what is the, so quality is a great problem. Quality, even research quality. I know that there are even the guides, they don't know what is the difference between small t and capital T so far as statistics is concerned. I asked many, and I am preparing one note on that. Similarly, capital R and small r, there is also differences. There are multi-stage sampling and multi-phase sampling. I have seen many of them, they say not clear. I say that if you want to test a hypothesis, if you have tested it at 0.01 level, can it be again tested at 0.5 level? Then there is no clarity. So in research also, great clarity is needed. So quality of teaching, number one, that is a challenge with us, that simply with these resources, how to go. Then another thing that we do not talk about the demand and supply. Nobody is making any study on demand and supply. Even demand and supply of teachers.
Earlier, I conducted one study, that is in 1995. We had at the time 49 colleges of teacher education. Almost 5,000 teachers were coming out. How many were getting job? 2,900 were getting job. So why other 2,100 were not getting the job? So subject-wise, I have seen that they have offered either Gujarati as one of the teaching methodology course, or Hindi or Sanskrit. And more we need is the English teachers and science teachers. But we have our own ratios and we follow that also. We cannot deviate. So this demand and supply. Engineering. Now so many engineering colleges that seats are vacant. This year also I came to know in Gujarat, more than 35 seats are vacant. Now why? So there is no demand and supply. And many engineers, when they come out, they teach as a assistant professor in engineering colleges and salary is 20,000. So where the root cause, you have to see the demand and supply. That every year, how many teachers are required, how many assistant professors are required, how many engineers are required. That study has to be done. And we have enough now computer assisted learning or other things, and softwares are available where you can find out with the extraporation and intraporation that next year this many teachers are required. Next year this many engineers are required. Next year this many MBAs are required, with here and there standard error of 10-15%, you can go for this. So demand and supply, this we are supposed to carry out. Then next is stress and anxiety on the part of the students. That's a great problem. Stress and anxiety. Nowadays also people are stressed. They are going to the Supreme Court whether JEE and all these examinations should be conducted or not. Yesterday, well, I was also interviewed. What do you believe? Whenever like students are ready, if infrastructure is there, then there is no problem. You should go. You use the mask, you use the sanitization facilities, you use the classroom which you are using for 30, now you take only 15 in that room, and you should conduct. So there is a stress, anxiety on the part of the students. Orientation of teachers. In higher education, we don't have any orientation. Only lecture method, all other methods. And the new policy says that discovery-based approach, creative approaches, problem-solving approaches, all this has to be used. So, of course, staff college is what we call, now it is Human Resource Development Center, earlier academic staff colleges. We started 28 days program. I think nobody had studied this. When any policy comes, I think a PhD scholar should go for this, or the university teacher should go for sort of a projects. I think on academic staff colleges, hardly there are two studies. I think one was in Baroda and one was in Pune. Except that how much money we spend, we have to call at least 5% professor from outside the state. You calculate their airfare and everything. You calculate their TADA and everything, and honorarium given to them. And as a result, what you are getting? Are you familiar? Because everybody bombards in their own way. So regular practice and the small group sessions are not conducted. It is only lecture based. So this orientation to teachers also is required. So what we want to do, we should go for research based alternatives for teaching. Here also we say that online we have to start it. तो हमारी मजबूरी है, इसलिए हम करना पड़ा, मजबूरी से करना पड़ा. But is online suitable? पहले बोलो, बच्चों को बोलो. I was trying with my grandson only. He said no. Online it's not suitable to me. I would like to enjoy, because they learn so many things from their peers. Higher education, of course, you can go for online. But हमारा तो स्पर्धा लग गई, वेबिनार की भी स्पर्धा लग गई. वो जोक देखा है ना कि अध्यापक कॉलेज में आता है पूरा बैग भर के सर्टिफिकेट्स ऑफ वेबिनार. तो ये स्पर्धा हो गई. जो सेमिनार 2 दिन चलता था वो भी 1 दिन में भी खत्म होने लगा. क्वेश्चन तो कोई पूछते नहीं है, पहले भी नहीं पूछते थे, ऐसे नहीं. ऑफलाइन में भी क्वेश्चन पूछते थे, ऐसा नहीं है. बिकॉज देयर what was more important is साइट सीइंग. कि भाई हम दुर्ग में बुलाया आबा ने, तो हम भिलाई जाएंगे, कुछ फैक्ट्री देखेंगे, ये सब देखेंगे. आपकी मैडम ने भी बताया कि बहुत अच्छा सिनारियो है, ये तो नेचुरल रिसोर्सेज है, तो वहां भी वो होता. तो वाइब्रेंट नहीं है. हमारा जो आत्मा बोलते हैं ना, आत्मा, दैट इज नॉट वाइब्रेंट कि मेरी ड्यूटी क्या है, व्हाट आई एम सपोज टू डू. तो पहला काम करना है हमें रिसर्च बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स. जो भी पॉलिसी आती है उसमें रिसर्च करके बताओ.
और पॉलिसी वालों को भी रिसर्च का लाभ लेना चाहिए और पॉलिसी बनाने से पहले भी ये करना चाहिए। तो मैंने बोला कि एक डिमांड सप्लाई की पॉलिसी बना दो कि कितने टीचर्स चाहिए, सो दैट ऐसा नहीं होगा कि अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं रहेगा। दैट इज नंबर 1। एंड फाइंडिंग्स ऑफ रिसर्च, कहा जिसके लिए किया वो तो जाता ही नहीं है। प्रोग्राम लर्निंग में इतना सारा रिसर्च हुआ 1980 में, 1964 में पहला रिसर्च हुआ था, when I was talking with Dr. Buch and discussing with them. 120 studies were in technology in third survey of research in education. उसमें से 70 तो प्रोग्राम लर्निंग में ही थे। और प्रोग्राम लर्निंग के जो भी रिसर्चेस थे, they have proved that is significantly impact is higher than the conventional method. But till today, you could not find any program in schools. These are all in school. Hardly, I think there are 2 studies in higher education in program learning. That was one by न्यूपा के जो वाइस चांसलर थे गोविंदा, उसने किया था। That was on measurement and evaluation, and he has come out. This is research based. He has proved. हमारा एक ग्रुप प्रोग्राम लर्निंग से पढ़ता था, दूसरा ग्रुप ऑफलाइन मोड में लेक्चर कम डिस्कशन मेथड से पढ़ता था। उसका एक गुजराती में भी स्टडी हुआ प्रोग्राम लर्निंग, बाकी कोई स्टडी has never entered. So what I want to say, let's see that findings of the research will reach to the users. Users को नहीं होता है। सरकार की कोई भी पॉलिसी पे काम करो, रिसर्च करो, they say we are not interested in your bulky thesis of 2 or 3 kg. Give us findings in 20 pages and that too in a language for whom we have conducted a study. ट्राइबल लोगों के साथ किया है, ट्राइबल लैंग्वेज में उसको 20 को ट्रांसलेट करके वो फाइंडिंग्स हमें दे दो। स्कूल के प्रिंसिपल के लिए किया है लीडरशिप पे, तो वो हमें दे दो। दैट्स ऑल दैट। बट वो कुछ भी होता नहीं है। कितना सारा एजुकेशन में भी बाय नाउ आई थिंक मोर देन 15,000 स्टडीज हैव बीन सबमिटेड, बट व्हाट इज द आउटकम? लोग डॉक्टर लिखते हैं, हर पर डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, और डॉक्टर नहीं बोला तो गुस्से भी हो जाता है कि डॉक्टर बोलो यार। मेरे भी हुआ था, मैं जब वाइस चांसलर बन के गया तो माई पीएस सेड कि सर आपका कार्ड बनवाना है। मैंने बोला बना लो, तो मैंने लिख के दिया प्रोफेसर रमेश चंद्र जी कोठारी। तो ही सेड सर आप पीएचडी नहीं है? मैंने बोला माई पीएचडी इज इंक्लूडेड इन माई प्रोफेसरशिप। नहीं सर ऐसा लिखो प्रोफेसर डॉक्टर। मैंने बोला नहीं, आप फिर आप बोल के मिस्टर एंड मिसेस एंड ये मुझे नहीं लिखना है, आपको लिखना है तो सिंपली प्रोफेसर कोठारी लिखो और रमेश चंद्र जी कोठारी लिखो, बाकी मुझे डॉक्टर लिखना नहीं है। बट ये बायोडेटा को एनरिच करने के लिए और ये एक जो आगे लिखता है ना एडजेक्टिव, उसके लिए भी काफी पीपल आर वेरी सेंसिटिव। इफ ही और सी इज डॉक्टर एंड आपने नहीं बोला, मर गए साहब, आपको कहीं निकल जाएगा आप सिस्टम में से बाहर। इतना ईगो वाले लोग होते हैं। So remember, so see that findings of research are going to the users community. वो नहीं जाता है, इसीलिए डॉक्टर बुच ने ट्राई किया। I think 9 books were prepared by Dr. Buch. What research says to classroom? What research says to classroom? वो इंग्लिश में था, but it was given to the नवोदय विद्यालय संगठन, and वो काम हुआ कि भाई ये रिसर्च ऐसा बताता है, आप पढ़ो, right? Then for research, analyze the needs of the society. So पहली चैलेंज और अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, चैलेंज के साथ ही चलते हैं हम। तो ये रिसर्च का है, उसमें मैंने बोला कि रिसर्च बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स को निकालो, ऑनलाइन पर भी स्टडी करके लोगों को बताओ कि ऑनलाइन से ठीक हो सकता है। आई एम नॉट नेगेटिव फॉर दैट, बट उसको बताओ एंड यू कैन से दैट दिस इज अ रिसर्च वी हैव कंडक्टेड एंड फ्रॉम दैट इट इज कमिंग। सो नीड्स ऑफ द सोसाइटी करो। आजकल सोसाइटी को क्या चाहिए? इम्यून वैक्सीन ही चाहिए, दे आर इंटरेस्टेड इन वैक्सीन। अच्छा वाला कोई मास्क चाहिए, अच्छा सैनिटाइजर चाहिए। कमा लिया लोगों ने, पैसा कमा लिया, सैनिटाइजर वालों ने भी कमा लिया। कुछ नहीं है उसमें, हमको सेटिस्फेक्शन मिलता कि हमने हाथ धो लिए, बट उसमें क्या था हमें पता नहीं है। मास्क भी लोगों ने बना लिए, पैसा कमा लिया है। सो मेनी थिंग्स हैड बीन डन, बट दैट इज ऑल विदाउट द रिसर्च। कि मास्क पहना फिर भी हुआ, नोबडी हैज डन द रिसर्च। सो रिसर्च के लिए सोसाइटी की नीड से, स्टूडेंट की नीड है, उसको एनालाइज करो, उसके हिसाब से रिसर्च करो कि क्या चाहिए है। फंड्स तो बहुत है रिसर्च के लिए, फंड्स लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं मिलता है। पैसा तो ICSSR लगातार 3 साल में गया, देखा कि 80% रिसर्च प्रपोजल तो रिजेक्ट होती है। क्यों? कि उसका ढंग से लिखा ही नहीं है। रिसर्च का प्रपोजल लिखना ये भी एक स्किल है। मैं तो नहीं मानता हूँ स्किल है, बट अभी मुझे किसी ने बोला कि ये स्किल मानते हैं हम। मैंने बोला ठीक है यार, मैं आपको एक आर्टिकल लिखना है तो स्किल,
मैंने बोला शुरुआत में प्रारंभ में ही बताया कि भाई शार्पनिंग ए पेंसिल इज अ स्किल, ऑपरेटिंग ए हायर लेवल ऑफ गैजेट दैट इज अ स्किल। बट अभी तो कम्युनिकेशन स्किल भी बोलते हैं, सॉफ्ट स्किल एंड लाइफ स्किल्स एंड एवरीथिंग। सो पैसा बहुत है, बट रिसर्च प्रपोजल ठीक से कोई लिखते नहीं है। दूसरे की थीसिस लिख देते हैं, पैसा लेके थीसिस भी लिखाई जाती है, लिखता है, कई लोग लिखते हैं 1 लाख रुपया। डेटा एनालिसिस का मैंने भी एक सिंपली पूछा कि आप डेटा एनालिसिस करते हैं, तो हाँ। तो मैंने बोला ये कमिटमेंट का एक स्टडी है, कर दोगे? तो बोले यह 75,000। एंड ही वाज फ्रॉम मेडिसिन एंड ही वाज एनालाइजिंग द डेटा ऑफ सोशल साइंसेस। और अहमदाबाद में रोला वाला कंप्यूटर सेंटर है, वहां जाके पूछा तो सर मुफ्त में हो जाएगा, एंटर कर दो, मैं जैसे बताऊं वो हिसाब से डेटा एंटर कर दो, विद इन 10 मिनट्स आई विल गिव यू। दे दिया। सो रिसोर्सेज कहाँ है और कैसे यूज करना है वो हमारे पास नहीं है। दैट इज वाई ऐसे रिसोर्सेज को पकड़ लेते हैं। एक हाइपोथेसिस टेस्ट करने का 2,000 रुपया लेता है एक या टी निकालो, गैरेट का खोलो, पेज 191 निकालो, फॉर्मूला मिल जाएगा और यू कैन डू इट। बट लोग नहीं करते हैं, ये मुफ्त में चाहिए सब कुछ। सो मोर फंड्स, यूजीसी में इतना पैसा है, नेट वालों को कितना पैसा मिलता है? इंजीनियरिंग का अध्यापक जो 15-20 हजार में काम करता है, उससे ज्यादा 35,000 तो जेआरएफ एसआरएफ को मिलता है। साइंस में उससे ज्यादा मिलता है। आईसीएसएसआर वाले प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे देते हैं? बट आई सेड 80% प्रपोजल्स आर रिजेक्टेड। रैशनल भी ठीक से नहीं लिखा है उसमें, नो नॉट प्रॉपर्ली रिटन, ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं लिखे हैं। सो दिस नीड्स टू बी डन। स्टाफ कॉलेज और एचआरडीसी भी बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ उससे कि ये करो यार, लोगों को बिठाओ शांति से, उसको बोलो कि ये नल हाइपोथेसिस लिखो, रिसर्च हाइपोथेसिस लिखो। अभी भी जेंडर को, हम सेक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। डोनाल्ड एरे बोलता है कि ये नहीं है, इट इज ए ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल। तो 100 में से 90 गाइड को तो पता ही नहीं कि ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल क्या है। सर ये क्या है, आपका कुछ गलती होता है। मैंने तो बताया कि डोनाल्ड एरे, नंबर भी बताया, LB1028T7, पेज नंबर 31, लास्ट पैरा। तो वहां देखो तो आपको पता चलेगा। पुरानी बुक में, अभी तो उसने भी 2 बुक निकाली, तो उसमें से वो भी शायद घबरा गया कि ऑर्गेनिज्म का लोग जानते नहीं है, मैंने डाल दिया तो गड़बड़ होगी, तो उसने वो पेज ही निकाल दिया। सो माय क्वेश्चन इज दैट लॉट्स ऑफ फंड्स आर अवेलेबल, तो योर लीडरशिप डिपेंड। अभी प्राइवेट वालों को भी फंड्स मिलता है, मैं आई लर्न दैट प्राइवेट को भी मिलता है, आईसीएसएसआर भी देती है, और प्राइवेट वालों को काफी फंड रिसर्च के लिए मिलता है, राइट। एंड सेमिनार एज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग, वो होना चाहिए। अभी जो वेबिनार है, बट सेमिनार। सो ये सारी मैंने बताई कि ये हमारे पास चैलेंजेस है और उसमें अपॉर्चुनिटीज भी है। अभी सेमिनार की बात कर लूं, बिकॉज मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम मिला। आपने वेरी पंक्चुअली शुरू किया, आभा ने बिफोर टाइम शुरू करके टाइम को मैनेज भी बहुत अच्छे से कर लिया, तो दैट्स डिजर्विंग पार्ट, अच्छा काम किया। तो सेमिनार में क्या होता है, हमारे वहाँ तो 400 लोग भी सेमिनार में आते हैं, पैरेलल सेशन चलती है, पता नहीं स्पीकर ही जो पेपर प्रेजेंट करते हैं, इतने लोग एक ग्रुप में होंगे, जिसका पेपर प्रेजेंट हुआ वो चला जाएगा, चेयरमैन भी बेचारा कुछ नहीं बोल सकता है उसको। तो मैंने आई थिंक 28 ईयर्स पीजी में काम किया, यूजी में 7 साल किया, उसमें 25 ईयर्स में सेमिनार में रहा। ये सीखने की बात है। अभी भी ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मैंने हमारे मिनिस्टर के साथ भी ये बात की, ऑनलाइन कैसे करते हैं, तो 5 मिनट उसे ले लिया जाए कि मेरे पास पहले तो मास्टर में 25 स्टूडेंट थे, बाद में 35 हुए, अभी 50 हुए, बट 50 सभी को मिलते नहीं है। जो गड़बड़ करते हैं उसको मिल जाते हैं, अटेंडेंस कंपलसरी नहीं बनाते हैं, असाइनमेंट लिख के दे देते हैं, ग्रेड दे देते हैं, उनको मिल जाते हैं। बट 35 तक का हमने क्या किया, कैसे किया है सेमिनार। तो पहला जब क्लास शुरू होता है, वी टीच देम कि सेमिनार क्या होता है। हायर एजुकेशन में सेमिनार से हम कुछ सीख सकते हैं, तो सेमिनार के बारे में बता दिया। स्टडी भी किया है, हमारी ही मैडम थी एक, अभी बेंगलोर में रहती है, उसने स्टडी भी किया है हायर एजुकेशन सेमिनार। तो सेमिनार क्या है, 1 घंटा भाषण दे दिया, फिर 2-3 घंटा भाषण दिया, हाउ टू राइट ए पेपर, थियोरेटिकल पेपर, कंसेप्चुअल पेपर। यहाँ रिसर्च पेपर की बात नहीं करती, थियोरेटिकल पेपर हम कैसे लिखेंगे वो उसको बताया। एपीए भी बताया कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन क्या बताते, वो बताया। उसमें 4 पॉइंट हम बताते थे, भाई क्लैरिटी,
ब्रेविटी, ओरिजिनलिटी एंड एथिकल, कंसाइज होना चाहिए पेपर, वो भी बताया। हाउ टू राइट, फिर रेफरेंस कैसे लिखना, दैट्स ए ग्रेट प्रॉब्लम इन एंटायर इंडिया अक्रॉस। सब जगह नेशनल इंटीग्रेशन नहीं है, बट रेफरेंस लिखने में और उसमें गलती करने में नेशनल इंटीग्रेशन है। लोग अपने हिसाब से लिखते जा रहे हैं भाई। इफ यू फॉलो एपी, एपीओ को फॉलो करो। इफ यू फॉलो आर्ट्स वाले हैं, हमें क्यों, हमारा अलग होता है। गिबाल्डी ने दिया है एमएलए, वो गिबाल्डी का है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। एपीए तो अभी भी आया, 18 में भी आया, 14 का तो मेरे पास प्रिंट भी है। इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस कैसे लिखना, वेबसाइट पूरी की पूरी वेबसाइट लिख देते हैं। मैंने बोला ये लिखने का तरीका नहीं है, ये वेबसाइट में से कौन सी वेबसाइट आपने पसंद की वही लिखो, मैं कहाँ ढूंढूंगा इफ आई वांट टू क्रॉस एग्जामिन। चलता है। वेस्ट एंड कान का बुक है आपके पास, देखा हो रिसर्च का, तो मोस्ट ऑफ द पीपल राइट KHAN, रियल में है KAHN, बट लोगों को लगता है कि ये गलत है। अरे यार, ऑथर खुद थोड़ा गलत लिखेगा, तो KAHN, बट आधी दुनिया लिखते हैं KHAN। देखो, एनीवे, सो हम रेफरेंस कैसे लिखना वो भी सिखाते। कितना घंटा हुआ? 1 घंटा हमने हाउ टू, व्हाट इज सेमिनार। 3 घंटा हाउ टू राइट ए पेपर। देन अगेन 4 घंटा हाउ टू राइट रेफरेंसेस, references of a thesis, reference of a secondary source, references of a book, references of a chapter in a book, all these things, journal article, ये सब बताते। देन मेरे पास तो आते हैं करीब, कल ही मैंने देखा 38 जर्नल्स आते हैं मेरे पास 2-3 महीने में। तो कहीं गुजराती है, कहीं हिंदी भी है। तो इंग्लिश जर्नल में से पत्ते फाड़ के मैंने एक बना दिया है फोल्डर। ये फोल्डर में मेरे स्टूडेंट को बोला कि भाई उसका ऑथर का नाम हाइड कर दो और जर्नल का नाम भी हाइड कर दो, और आई आस्क देम टू सीट इन ए ग्रुप। 2 घंटा बैठ जाओ आप उसमें। आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का भी थोड़ा नहीं चलने दूंगा मैं बोला कि मेरा काम ये चलेगा, आप अपने टाइम टेबल को छोड़ दो आज के लिए। हम 3 घंटे यहाँ बैठेंगे। आई एम गिविंग देम ए थियोरेटिकल पेपर एंड आई वांट देयर कमेंट्स कि उसमें रेफरेंस ठीक लिखा गया है, क्लैरिटी है, ब्रेविटी है, कंसाइज पेपर है, कुछ इलॉजिकल तो नहीं लिखा है। पहले जो स्टैंड लिया कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ एग्रीकल्चर, तो पूरे स्टेट अंत तक यही बात को कि कहीं कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया, ये सब नहीं है। तो रेफरेंस ठीक लिखे हैं। देन वी विल हैव ए प्रेजेंटेशन, ईच ग्रुप विल प्रेजेंट फॉर 10 मिनट्स, तो वो प्रेजेंटेशन ठीक से चलता है। एंड दैट लर्निंग, दीज आर ऑल ऑथेंटिक लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उससे जो लर्निंग होगा दैट इज फाइनल। सो करीब एक सेमिनार का 1 घंटा, पेपर लिखने का 3 घंटा 4, रेफरेंस लिखने का 3 घंटा 7, पेपर को इवेल्युएट करने का 3 घंटा 10, और 1 घंटे से ज्यादा 2 घंटा प्रेजेंटेशन व्हाट दे हैव फाउंड इन दोस पेपर। तो 12 घंटा का काम हुआ। मीन्स ऑलमोस्ट एक वीक में इतना काम कर लो तो 1 क्रेडिट का कोर्स हो जाएगा। सो इतना काम करने के बाद वी गिव देम ए मॉक प्रेजेंटेशन आइदर आवरसेल्व्स और वी इनवाइट आवर रिसर्च स्कॉलर। तो रिसर्च स्कॉलर एक पेपर प्रेजेंट करेगा, डिस्कशन होगा। उससे साथ ओरिएंटेशन में क्या बोला जाएगा कि बोर्ड होता है। इफ योर पीपीटी इज देयर वेरी फाइन, बट पहले तो पीपीटी नहीं था, तो बोर्ड पे टाइटल लिखा होता है, स्पीकर का नाम लिखा होता है, चेयरपर्सन इज ऑल्सो फ्रॉम द ग्रुप ओनली, नो टीचर उसमें से। एंड इफ 35 स्टूडेंट 35 प्रेजेंटेशंस आर देयर, तो चेयरपर्सन सब बनेंगे, इट इज कंपलसरी। और चेयरपर्सन की क्या भूमिका है, इनिशिएटर की क्या भूमिका है, ये भी किया कि भाई आज कोई संध्या बहन प्रेजेंट कर रही है तो उसका इंट्रोडक्शन, और पहले इनिशिएट करेगा कोई कि भाई टुडे संध्या विल बी द चेयरपर्सन, एंड संध्या का इंट्रोडक्शन भी देंगे। थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए हमारे पीयर्स के बारे में। हम प्रोफाइल की बात करते हैं तो थोड़ा कि कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ से आते हैं, क्या है फेवरेट डिश कौन सी बनाती है, ऑल दिस 3-4 मिनट्स में कर दिया। देन चेयरपर्सन विल टेक द सीट and chairperson will invite the speaker, she will introduce the speaker। ये भी तो स्किल है ना, इंट्रोडक्शन देना कोई आसान बात नहीं है। कई बार मैं भी, लोग बोलते हैं असंख्य पेपर लिखे हैं, बिन संख्या के। अरे भाई ऐसा नहीं है, असंख्य नहीं होता है, लिमिटेड है। he has guided projects and project, अरे भाई 20 प्रोजेक्ट गाइड किया, you have to be specific, so that is also a skill, introduce। तो वो चेयरमैन स्पीकर का करेंगे, स्पीकर विल बी इनवाइटेड फॉर प्रेजेंटेशन।
नेशनल सेमिनार में, इंटरनेशनल सेमिनार में 15 मिनट दी जाती है स्पीकर को। आई हैव अटेंडेड विद इन इंडिया, एक इंटरनेशनल मैंने अटेंड किया, तो 90 मिनट्स का सेशन होता था, 4 प्रेजेंटेशन 15-15 मिनट का, एंड 30 मिनट्स फॉर डिस्कशन। तो यहाँ तो हम 30 to 40 मिनट्स प्रेजेंटेशन के लिए देते थे, 40 मिनट्स एक पेपर के लिए एमएड के छात्र को, एंड देन इट इज फॉलोड बाय डिस्कशन। डिस्कशन कैसे करना वो भी उन लोगों को बताया है। और एक जो हमारे क्या रोल है, 4 टीचर उसमें लगे हुए थे। डोंट टॉक ऑफ वर्कलोड कि ये सर मेरा, मैं कैसे बैठ सकूंगा, मेरा और क्लास होगा। नथिंग डूइंग, इफ यू आर इन्वॉल्व हियर, आपको 2 घंटा, बिकॉज टाइम टेबल भी हमने 2 घंटा नहीं लिखा, 3:15 ऑनवर्ड्स, 5 भी बजेगा उसमें और 5:15 भी होगा। सो दैट इज अवर स्टाइल। अभी एक चार्ट बनाया, उसमें हमने लिख दिया हॉरिजॉन्टली, यहाँ नाम लिख दिया सब बच्चों के, ऑल 50 आर देयर, 50 है तो ठीक है, अप टू 50 यू कैन मैनेज वेल। एंड यहाँ लिखा, पहला लिखा आस्किंग क्वेश्चन, फाइंडिंग डिस्क्रिपेंसी इन द पेपर, फाइंडिंग ग्रामेटिकल एरर्स, फाइंडिंग रिजोल्विंग द इश्यू, रिएक्टिंग, सजेशंस, ऐसे पूरा का पूरा इतना बना के टिक करना होता है। देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो उसमें पहली शर्त क्या होगी, सभी बच्चों का आपको नाम से जानना होगा। देन ओनली, बिकॉज आपने क्वेश्चन पूछा तो भाई संगीता जी ने क्वेश्चन पूछा तो मुझे संगीता जी के नाम के साथ में क्वेश्चन में एक टिक लगाना है। स्टैटिस्टिक्स में टेली बार करते हैं जैसे, किसी ने पेपर में डिस्क्रिपेंसी ढूंढ निकाली कि साहब आपने तो पेपर में पहले लिखा कि इंडिया का हायर एजुकेशन बहुत क्वालिटी है, बट पूरे पेपर में तो आपने क्रिटिसिज्म ही किया क्वालिटी की, तो दैट इज नॉट गुड। तो उसमें दैट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ डिस्कशन। रेफरेंस की गलतियां, स्पेलिंग की गलतियां, ये सब का टैली करते हैं। क्वेश्चन की टैली फाइनली निकाल देते हैं कि कोई भी पूछ लेता है कि भाई व्हाई यू हैव सिलेक्टेड दिस टॉपिक, ये क्या किया, बिकॉज दैट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ डिस्कशन। फिर साथ में बैठ के उसका रेटिंग करते हैं, 4 टीचर बैठ के पेपर का भी। सो पेपर, प्रिपरेशन ऑफ पेपर वाज 50% मार्क, फॉर प्रेजेंटेशन 3 पार्ट लगाए हमने। प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर कुछ 20 मार्क्स, देन 30 मार्क्स फॉर प्रिपेयरिंग द पेपर, पेपर कैसे बनाया, और 50% ओवरऑल पार्टिसिपेशन। तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, पार्टिसिपेट तो करना ही होगा, टैली लगनी चाहिए तो ही काम होगा। तो दिस इज एन यू कैन से सेमिनार एज ए मेथड। सो ये बहुत अच्छा चला। फायदा क्या हुआ, तो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ गई। हमारा तो इंग्लिश मीडियम था, बट पहले हम बोलते थे कि भाई आप कोई भी लैंग्वेज में शुरू हो सकते हैं, बाद में ग्रेजुअली कम टू दैट, एंड पेपर बनाना भी अच्छे सीख लिया। एंड टुडे मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर डूइंग वंडरफुल जॉब इन मेनी यूनिवर्सिटीज नाउ। हमारे बच्चे न्यूपा में भी है, हमारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है, सब जगह है। दैट इज देयर। सो ये सेमिनार का कंसेप्ट है, वो मैंने आपके साथ बताया। तो ये अपॉर्चुनिटीज है कि हम कर सकते हैं। टाइम लगेगा साहब उसमें, वर्कलोड की मेरा वर्कलोड खत्म हो गया, दैट शुड नॉट बी देयर। देन व्हाट आर द अदर सिस्टम्स नाउ व्हिच हैज कम? आई थिंक आई हैव टू कंटिन्यू अप टू 12:30, बाद में क्वेश्चंस होगा। तो अभी भी 11 मिनट्स मेरे पास है। बाकी सब जो बातें आई उसमें हम कुछ नहीं कर पाए। दैट इज एक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आया। कहाँ से आया? नेशनल नॉलेज कमीशन, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, वाइस चांसलर मीटिंग ऑन 28 जनवरी 2009, 2011 में भी फिर से मिले। वहां से एक शब्द आया, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट है उसमें भी लिखा है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। अभी चॉइस बेस्ड आएगा तो उसमें क्या क्या आएगा? हायर एजुकेशन में ग्रेडिंग आएगा, सेमेस्टर आएगा, इंटरनल एग्जामिनेशन आएगा। तो आर वी सुटेबल विद दैट? मैंने देखा, मेरा ही प्रोजेक्ट था, गुजरात सरकार ने मुझे करीब पहले 10 लाख रुपया दिया, बाद में 25 लाख और दिए यूनिवर्सिटी को, एंड वी हैव टू कंडक्ट। हमने 460 कोर्स आउटलाइन भी बनाई, आर्ट साइंस एंड कॉमर्स के लिए, एजुकेशन की नहीं बनाई। तो क्या हुआ फाइनली? नो, वी वर नॉट सक्सेसफुल। शुरू किया, मैंने 5 बाबतें रखी थी कि भाई आपको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम रखना है तो पहले रखो फाउंडेशन सब्जेक्ट। एजुकेशन में फाउंडेशन किसे बोलेंगे, ढूंढ निकाल। फिर एज यूजुअल हमारा प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी, मेजर एंड माइनर, वो। देन तीसरा लिखा इलेक्टिव्स,
चौथा लिखा सोशल ओरिएंटेशन। सोसाइटी को तो जानो यार, आप साइंस के हो गए तो आप कुछ नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। आप आर्ट्स वाले हो गए, पोएट्री लिखना शुरू कर दिया तो ये नहीं चलेगा। यू शुड नो अवर सोसाइटी कि भाई इतना पानी आया बट ये दरिया में चला गया, और जब आएगा नेक्स्ट ईयर मार्च तो बोले पानी नहीं है, तो आपने क्या किया? आपने वाटर हार्वेस्टिंग तो सीखा ही नहीं। तो हार्वेस्ट करो, जो पुराने कुएं हैं, गांव में कुआं बोलते हैं ना, कुएं, वेल, तो उसमें सब पानी को जाने दो, कुएं को ढक दो, बिकॉज अभी आजकल कुएं में कोई पानी लेने जाएगा भी नहीं, तो उसमें वो पानी जाए, ऐसा ट्राई करना चाहिए। तो वाटर हार्वेस्टिंग सीखो। अभी यूजीसी ने भी नेक में लगा दिया है कि भाई वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द कंपोनेंट। हमारे वहाँ तो 1500 स्कूल में वाटर हार्वेस्टिंग कर दिया बच्चों ने। तो दिस इज द नीड ऑफ आवर। सो ये हमें करना चाहिए। तो वो नहीं हुआ, सीबीसीएस क्यों नहीं हुआ? अच्छा तो है, कंसेप्ट इज गुड कि क्रेडिट आ गई सब सब्जेक्ट के साथ, कि आपको टीचर एजुकेशन में एजुकेशन साइकोलॉजी है तो यू विल से इट इज 3 क्रेडिट कोर्स। 3 क्रेडिट्स मीन्स व्हाट? तो आपको 15 वीक पढ़ाना है। 15 वीक कहाँ से आए? ऐसे तो यूएस से आए, यूके से आए, जर्मनी से आए, बिकॉज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेमेस्टर? 15 to 18 weeks. It's a period of teaching for 15 to 18 weeks. We Indians are very intelligent. 15 को पकड़ लिया नीचे वाले को, तो 15 को पकड़ लिया, 15 वीक हो गया। Now what is the definition of credit? 1 credit is equal to 1 hour of direct teaching. आपको क्लास में जाके पढ़ाना है, ऑनलाइन है तो भी है, कुछ भी है। 1 hour of teaching, आपका 3 क्रेडिट का कोर्स हुआ, 15 वीक है, तो यू आर सपोज टू टीच फॉर 45 आवर्स। हो गया आपका काम। और मेरे साथ कोई शेयर कर रहे हैं तो यूनिट में भी लिखो। यूनिटाइजेशन भी आजकल ठीक से नहीं होता है, आउटकम भी नहीं। मैंने जो 460 सिलेबस बनाए ना, तो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट वाज उसमें ऑब्जेक्टिव्स लिखना। वो तो बोले यार बीएड वालों का काम। अरे यार, आप भी तो पढ़ाते हैं, आपको भी जानना चाहिए कि मुझे क्या करना है। सो लर्निंग आउटकम लिखो ठीक से, टाइटल लिखो, मार्क के चक्कर में मत पढ़ो। बट अभी स्टिल वी आर नॉट कमिंग आउट फ्रॉम दिस कंफ्यूजन, मार्क वर्सेस ग्रेड और क्रेडिट। लोग पूछते हैं कि कितना, एक क्रेडिट का कितना मार्क होगा? मैंने बोला कोई होता नहीं है, क्रेडिट इज क्रेडिट एंड मार्क इज मार्क। बट फिर भी समझाने के लिए करना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो 45 आवर्स पढ़ाना है। जब आपने लिखा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 1 का टाइटल लिखो और उसके सामने सब यूनिट्स लिखो, और वहां आवर्स लिखो कि ये यूनिट में कितना घंटा चाहिए, कि ये मैं पढ़ाऊंगा, ये आज आबादी पढ़ाएगी, तो ये 12 घंटे का यूनिट है इतना। लाइक दैट यू कंप्लीट 45 आवर्स। उसके नीचे आप प्रैक्टिकल वर्क दो कि क्या करना है। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग लिखते हैं तो आप उसको केस स्टडी दे दो। स्कूल में जाओ, एक गिफ्टेड बच्चा पसंद करो, एक लो मार्क्स वाला पसंद करो, और उसकी वजह ढूंढ निकालो, थोड़ा केस स्टडी करो। मैं वो केस स्टडी नहीं बोलता हूँ जो रॉबर्ट इन ने अपनी बुक में दिखा, वो इतनी सारी बात नहीं करना, बट उसको देखो तो कहीं कि क्या करता है लड़का। सिंपल प्रोफाइल से भी तो बात हो सकती है ना, सिंपल प्रोफाइल से भी बात हो सकती है। सिंपल एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ। एक टीचर क्लास में गई, फॉरेन का एग्जाम्पल है। उसने देखा कि लास्ट में एक बच्चा बैठा रहा, उसने स्नान कब किया होगा पता नहीं, उसने हेयर कम कब किया है वो भी पता नहीं, कपड़े कब उसने वॉश किए होंगे वो भी पता नहीं, बैठा था शांति से, लास्ट में था, लास्ट बेंच, लॉर्ड ऑफ द लास्ट बेंच की तरफ, और कोई उसके साथ भी बैठता नहीं था। नोबडी वाज सिटिंग हिम। चला सेमेस्टर, तो वहां सितंबर में चलता है, दिसंबर आया, क्रिसमस आई, सब बच्चे ने सोचा कि भाई हम हमारे टीचर को कुछ गिफ्ट देंगे। ये बेचारा पुअर आदमी तो बहका गया कि क्या करे, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो वो गया दरिया किनारे पे गया, सिसोर, वहां से कुछ होते हैं ना शंख वगैरह, वो ले लिया, और कहीं से वायर लेकर उसने एक अच्छा सा ब्रेसलेट बना दिया टीचर के लिए। घर में ढूंढा तो घर में उसको मिला एक कोई सेंट की बोतल मिल गई, परफ्यूम की, यूज की हुई है, और पुअर पॉलीथीन पैक लेके वो क्लास में बैठ गया क्रिसमस के दिन। सबने अच्छी अच्छी गिफ्ट दे दी, और उसका टर्न तो लास्ट ही आया एज यूजुअल। वो बेचारा गया। वो दिन उसकी टीचर में कुछ कौन सी भावना आ गई पता नहीं, उसने उसका ठीक से हक कर लिया, हक कर लिया। सी दिस इटसेल्फ इज इनफ। ये तो हम थोड़े टेढ़े चल रहे हैं कि टीचर की बात कैसे लग गई। तो नेक्स्ट डे ये जो हक कर लिया ना, ही फेल्ट दैट देयर इज समवन टू लव मी, कोई मुझे प्यार दे रहा है।
दूसरे दिन स्नान करके आ गया, बाल कटवा के आ गया, अच्छा कपड़े पहन के आ गया। अभी टीचर का ध्यान वहीं केंद्रित हुआ कि ऑल ऑफ सडन ये क्या हो गया। फिर उसने वहां जो मैं प्रोफाइल शब्द से यहाँ चला गया, प्रोफाइल देखा, उसका क्लास 1 का प्रोफाइल देखा, उसका नाम था टेड, TADE। टेड का प्रोफाइल देखा, उसमें लिखा था क्लास 1 टीचर ने, टेड इज एन एक्सेप्शनल इंटेलिजेंट चाइल्ड एंड ही कैन डू वंडर्स। प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी है, वो कुछ भी कर सकता है। सेकंड की टीचर ने भी वही लिखा। थर्ड की टीचर ने लिखा कि नावाडेज टेड इज नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लासरूम। उसने वजह भी ढूंढा, घर गई होगी उसको, ये टीचर को घर भी जाना पड़ता है, नहीं जाते हैं कि इतनी तनख्वाह में घर नहीं जाते। ज्यादा तनख्वाह होगी तो घर जाएंगे, TADA मिलेगा तो जाएंगे। तो उसने देखा तो टीचर्स, टेड्स मदर वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। टेड्स ग्रैंड मदर, जिसे नानी बोलते हैं, मदर्स मदर, वाज लुकिंग आफ्टर दैट एंड टेड्स फादर रन अवे विद सम अनदर लेडी। ये लिखा था डॉक्यूमेंट में। आपका हम तो ऐसे भी नहीं लिखते हैं क्योंकि कोई पुलिस केस ठोक देगा हमारे पर कि वो कैसे चला गया, हाउ कैन यू राइट। सो वो लिखा था। और घर में एक ही आदमी बीमार होता है तो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन कहाँ जाता है, हॉस्पिटल में या वहीं जाता है। देन देयर वाज नोबडी टू लुक। सो दिस वाज द रीजन कि टेड कपड़े वॉश नहीं करता था, काम नहीं करता था, बिकॉज उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता था। पूरा का पूरा फोकस वो बीमार मदर पे गया था। तो ये बात तो हो गई। मैडम ने काफी ध्यान दिया उसने। ये जो प्रोफाइल था, प्रोफाइल का फायदा ये होता है। तो एक दिन टेड डॉक्टर बन गया। उसने अपनी टीचर को याद किया, बुलाया। टीचर भी वैसी सेंसिटिव थी, वो ब्रेसलेट रखा था उसने और वो पहन के गई। एंड टेड ने बोला कि मैडम मेरी तो माँ अभी तो एक्सपायर हो गई है, यू टेक द प्लेस ऑफ दैट। दैट इज द रोल ऑफ ए टीचर। एक टीचर क्या क्या कर सकता है, दैट इज बात। तो ये हम थोड़ा आगे चले गए, इमोशनल फैक्टर पे चले गए। बट सेमेस्टर, तो हमारे वहाँ लोग बोलते हैं कि सेमेस्टर तो नहीं चला। आजकल हमारी कॉलेजेस कैसे चलती थी पहले पता है? थोड़ा बुरा मत मानना, झंडे से झंडा। 15 अगस्त को शुरू होती है कॉलेज और 26 जनवरी को खत्म हो जाती है। एंड वी वांट टू इंट्रोड्यूस सेमेस्टर। कैसे होगा? नहीं होगा। बीएड में सेंट्रलाइज एडमिशन है। लास्ट एडमिशन कब मिला? 5 सितंबर को लास्ट एडमिशन हुआ। तो कैसे कॉलेज शुरू करेंगे? आपको सितंबर में ही करना चाहिए और सितंबर में किया, बट फिनिश तो कब कर दिया? अप्रैल में कर दिया। दैट इज नॉट अलाउड। सेमेस्टर मीन्स 15 वीक्स ऑफ टीचिंग होना ही चाहिए। सितंबर से शुरू किया, आपकी छुट्टी आ गई, आप छुट्टी दे दो और सी दैट 15 हफ्ता खत्म हो गए, वीक्स खत्म हो गए, then you can start with another. So it should be September to September only. It should not be September to March. No, that should not be there. So हमारा माइंड सेट भी चेंज करना पड़ेगा सेमेस्टर के लिए। तो इसीलिए आई थिंक दैट वाज नॉट सक्सेसफुल सेमेस्टर। और ऐसा रिजल्ट सीबीएसई में इलेक्टिव होता है कि आपको, एक तो काफी बातें हैं सीबीएसई में, तो सीबीएसई तो सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो इलेक्टिव आप अपना चूज कर सकते हैं इलेक्टिव, बट वो प्रोविजन कहाँ होगी? हमारे पास 7 अध्यापक है, 2 छुट्टी पर है, 2 जगह खाली है, कौन करेगा? तो इलेक्टिव्स की तो बात ही खत्म हो गई। गुजरात सरकार ने 20% इलेक्टिव के लिए दिया, 60% मेजर माइनर और प्रिंसिपल सब्सिडरी के लिए, 20% फाउंडेशन को लिया। बाकी 2 मेरे कंपोनेंट तो निकाल ही दिए। जो मैंने बोला ना कि एनएसएस एनसीसी वगैरह भी होना चाहिए, उसके तो नोबडी बॉदर्ड फॉर इट। मैंने बोला यार सोसाइटी के लिए तो काम करो। आजकल तो बीएड वाले कुछ काम करते हैं, गांव को अडॉप्ट करते हैं। जब नेक आती है तब, बाकी तो कुछ कोई नहीं करता है। नेक आती है तो एक गांव में जाते हैं, उसको थोड़ा नारा लगा देते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, वीमेन को पढ़ाओ, बच्चे को पढ़ाओ, वो सब हम कर लेते हैं। दैट इज देयर। सो ये सेमेस्टर सिस्टम भी इतनी नहीं चली। सो दैट वी शुड टेक केयर ऑफ कि सेमेस्टर को कैसे बढ़ाया जाए। ये सेंट्रल सिस्टम आ गई, वहां से खत्म हो गया, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ की सेंट्रल सिस्टम, गुजरात की सेंट्रल सिस्टम। ये तो अच्छा है कि हमारी सेंट्रल सिस्टम पूरे देश के लिए नहीं है, नहीं तो 1 साल तक तो एडमिशन होता है और फिर दूसरे साल पढ़ने की बात आती है, राइट? सो एक ही सिलेबस होना चाहिए कि नहीं? यू गिव थॉट टू दिस। पूरे हिंदुस्तान में आवाज आती है?
Yes, sir. You are audible. पूरे हिंदुस्तान में एक ही सिस्टम चलनी चाहिए, सिलेबस इक्वल होना चाहिए। आप बोलेंगे कि क्यों? आप बोलेंगे कि क्यों एक ही होना चाहिए? तो उसके साथ मैं जाना चाहता हूं कि मॉड्यूल बना देते हैं। अभी आज आप दो तरह से मॉड्यूल बना सकते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने भी मॉड्यूल बनाए, ओपन यूनिवर्सिटीज बाकी ने भी बनाए। तो ये मॉड्यूल बनने से क्या है कि पूरे देश में आप कर सकते हैं एक ही काम। नेट का सिलेबस एक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करो तो सिलेबस मद्रास में बैठ के करो या दुर्ग में बैठ के करो, एक ही है। तो ये क्यों नहीं हो सकता है ऐसे मॉड्यूल? और रीजनल में करना है तो पूरे स्टेट में तो एक करो कि भाई अब हमें हिंदी में करना है, हमें गुजराती में करना है, हमें इंग्लिश में करना है, तो एक मॉड्यूल बन जाएगा। और बार बार चेंज करना रहता है, उसमें एडिशन मॉडिफिकेशन करना है। वो मॉड्यूल को आप कंप्यूटराइज भी बनाओ और वो मॉड्यूल को आप वही बनाओ, है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने सेमिनार वाला बताया कि उसमें साथ साथ ही ग्रेडिंग भी साथ भी होगा। जैसे जैसे वो क्या रिस्पॉन्स है उससे मिल जाएगा, आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो आपका टीचिंग और लर्निंग दोनों साथ में हो जाएगा। तो ये मॉड्यूल बन जाएगा। मॉड्यूल सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकता है। तो ऐसी कभी भी सिचुएशन आई, आप बोलो कि भाई, वो बोलेगा कि मेरे पास इंटरनेट नहीं है, तो आप ले लो ये बुक्स, पढ़े, मॉड्यूल परचेस कर लो और मॉड्यूल से पढ़ाई करो। और इन एवरी मॉड्यूल देयर इज अ सेल्फ हेल्प टेस्ट, टेस्ट भी दिया है, वो इधर ऑनलाइन दे दो, ऑफलाइन दे दो। तो दोनों तरीके से ये मॉड्यूल कर सकते हैं। जैसे आजकल नॉर्थ में तो बहुत पॉपुलर है, मैडम सब कोई बुक लिखता है, पता नहीं कैसे लिखता है, क्यों लिखता है, बट ए गाइड टाइप ऑफ बुक लिखते हैं, उसमें ज्यादा भरोसा नहीं रख सकते हैं। बट ऐसे मॉड्यूल जो स्टेट के एक्सपर्ट ने लिखे, दैट इज वेरी फाइन मॉड्यूल। उसको ऑनलाइन भी बनाओ, ऑफलाइन भी बनाओ, तो आपका काम बच्चा पढ़ता रहेगा। और इट इज रिटन इन दिस वे एडिस वी आर टॉकिंग। मॉड्यूल ऐसे लिखे जाते हैं कि आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि दिस बुक इज टॉकिंग टू मी। वो करना चाहिए मॉड्यूल से, तो वो बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। सो दीज आर अवर चैलेंजेस। एक रिसर्च बहुत बड़ा चैलेंज है। रिसर्च सोसाइटी बेस्ड होना चाहिए, नेशन की डिमांड के हिसाब से होना चाहिए। रिसर्च के साथ और जो ओरिएंटेशन टू टीचर्स, तो मैंने बोला कि सेमिनार को एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ हमारे टीचिंग बना देना चाहिए एटलीस्ट फाइनल ईयर में। तो उसको प्रेजेंटेशन क्या करना है वो भी पता है, कैसे करना है वो भी पता है। एंड मेरे जैसे बैठेगा 35 पेपर में बैठूंगा मैं एक सेमेस्टर में, तो मेरा भी नॉलेज बढ़ता जाएगा। अच्छा पेपर है तो मेरे पास तो कभी अच्छे स्टूडेंट की फाइल भी मैंने मेरे पास रखी है, और कभी मिलते हैं तो बताता हूँ कि ये पेपर देखो मेरी, मैं कंप्यूटर का इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ बट मेरे पास 60 फाइल है यहाँ। सपोज कि आज हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन की 2 फाइलें हैं, एक इवेल्युएशन इन हायर एजुकेशन, एक जनरल। तो उसमें काफी चीजें होती है, कहीं आर्टिकल किसी का मिला तो भी मैं डाल दूंगा, मेरी खुद की पीपीटी डाल दूंगा, कुछ नोट बनाया एनपीएफ में वो भी डाल दूंगा। लाइक दैट करना चाहिए। तो ये करने से एक फायदा होगा। तो सेमिनार से उसको ओरिएंट करना चाहिए, ओरिएंटेशन अबाउट द सेमिनार। फिर तो ये ग्रेडिंग, ग्रेडिंग भी तो अभी तो टाइम नहीं है, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। अभी नेशनल पॉलिसी ने एक बताया कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही ग्रेडिंग सिस्टम हो। आपको 10 पॉइंट लेना है, 11 पॉइंट लेना है, 5 पॉइंट लेना है, एक ही। और उसका इंटरप्रिटेशन भी एक ही होगा कि भाई 5 की डेफिनेशन क्या है, 4.49 इज 4 एंड 4.50 इज 5। वो भी अलग अलग लोग रखते हैं। सो ये नहीं होना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स आई हैव शेयर्ड विथ यू। इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस आप बताइए। ओके, सो अब थैंक यू वेरी मच प्रिंसिपल मैडम, आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने अच्छा काम किया और मुझे भी बुला लिया उसे। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. I also already requested to the participant, if you have any queries, please ask, so that we can take advantage of sir. He can make all the things very, explain all the things very easily. Sir, I have one questions from Ayushi Tiwari. We actually want to know that explain the effectiveness of course portfolio in improving course quality at the higher education system. नहीं, मैं समझा नहीं। पोर्टफोलियो, Effectiveness of course portfolio, sir. पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं? Yes, sir. In higher education. पता नहीं पोर्टफोलियो को आप क्या समझते हैं। मैंने जैसे प्रोफाइल बोला ना, ऐसे वर्ड पोर्टफोलियो भी चलता है। तो whenever limited students are there and most of our faculties we have a class 10th is fixed, BBA
BCA, MBA, MBA, BSW, B.Ed, M.Ed, वहाँ ये टाइप के पोर्टफोलियोज होते हैं, तो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। हम उसको प्रोफाइल भी बोलते हैं। तिवारी जी आप क्या समझे मुझे पता नहीं है, बट ये अभी प्राइमरी के लिए तो नेशनल पॉलिसी ने बताया कि भाई एक हेल्थ कार्ड भी होगा और प्रोग्रेस कार्ड भी होगा। सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज देयर एंड दैट विल हेल्प ए लॉट टू अंडरस्टैंड चाइल्ड, बिकॉज हम हमारे बच्चे को समझते नहीं है। बच्चे मीन्स हमारे स्टूडेंट, we are unable to understand. So if this type of tool is there, I think that will be quite all right. I hope I have understood the problem clearly. I have already cleared so many queries of us. Just I also I am very grateful to you to explain the choice-based credit system, because I have so many doubts regarding it. सर एक और क्वेश्चन है, भारत में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एक बहुत बड़ी चुनौती है। टॉप 200 वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के उच्च शिक्षण संस्थान भी क्यों नहीं आप जगह मिल पाती उन्हें? तो पहला काम तो रिसर्च का, मैंने बोला कि हमारा रिसर्च इतना पावरफुल नहीं है। रिसर्च को पावरफुल बनाओ, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द सोसाइटी करो। हम क्यों वैक्सीन नहीं बना पाते हैं? रशिया वाला क्यों पहला बना देता है? अमेरिका वाला क्यों करते हैं? सो पहला काम ये करना है कि स्ट्रेंथन योर रिसर्च। वो नहीं होता है। हमारा रिसर्च सिंपली डॉक्टर लगाने के लिए होता है, उसका कोई वैल्यू बाकी होता नहीं है। वहाँ उसका ना तो सैम्पलिंग का ठिकाना होता है, ना तो रेफरेंस का ठिकाना होता है, ना तो ठीक से मेथोडोलॉजी लिखी जाती है। दैट इज अ ग्रेट ड्रॉबैक ऑन द पार्ट ऑफ ए रिसर्च। मेरा एक और भी प्रेजेंटेशन है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन हायर एजुकेशन, और काफी लोगों ने बताया है। हमारे एक ऑथर है जैसे जिसने यूनिवर्सिटी न्यूज में लिखा था आर्टिकल दहिया कि 80% ऑफ आवर स्टडीज आर रिपीटेटिव, प्लेजियराइज्ड, irrelevant and hence they are nonsense. ऐसा क्लियरली लिखा है दहिया साहब ने। सो क्वालिटी ऑफ रिसर्च शुड बी स्ट्रेंथन, देन हम आगे जाएंगे। सेकंड इज दी पेटेंट। हमारी पेटेंट नहीं होती है। पेटेंट में मेरे पास आई डोंट नो, कहीं मेरे पास डेटा था, पेटेंट कितनी होनी चाहिए हमारे पास? बाकी सब देशों में इतना सारा पेटेंट है। आई कैन सी कि इंडिया एक्सपेंड्स ओनली 1% ऑफ इट्स GDP ऑन रिसर्च। 1% हम यूज करते हैं। Japan spent 3.7% on its GDP. China spent 2% of this. Number of patents applied by the India is 1%. और टोटल दुनिया में जितने लोगों ने अप्लाई किया ना पेटेंट के लिए, उसमें हमारी पेटेंट 1% है। चाइना अकाउंट्स 28% ऑफ द टोटल। देखो कि वो क्यों आगे जा रहा है। एंड इंडिया ओनली 0.4 ऑफ इंडियन पेटेंट्स आर एक्सेप्टेड। 1% अप्लाई करते हैं पेटेंट के लिए। क्या करते हैं? 1% भी अप्लाई। टोटल दुनिया में जो 100 पेटेंट गई एक साल में, तो उसमें एक पेटेंट हमारी होती है, उसमें कितनी एक्सेप्ट होती है? 0.4। तो दैट इज नेग्लिजिबल। सो पेटेंट्स आर एक्सेप्टेड, देन जापान अकाउंट्स एटलीस्ट 28%। सो दिस थिंग पेटेंट रखनी चाहिए। हमारे पास ये पेटेंट नहीं है। अदरवाइज हमारा कल्चरल हेरिटेज तो बहुत रिच है। कैंसर को मिटाने के लिए भी हमारे पास मेडिसिनल वैल्यू है। हमारे ट्राइबल में जाके देखो, आपके वहां भी जाके देखो, वो कोई दवाइयाँ नहीं लेना है। कहीं एक लीफ लगता, उसका रस डाल देगा तो आपका झुंड भी खत्म हो जाएगा। ये सब है, उसमें से सीख के पैटर्न बनाओ, वो नहीं है। सो क्वालिटी हमारी, व्हाई वी आर नॉट देयर, दिस इज नंबर 1, क्वालिटी ऑफ रिसर्च। एंड सेकंड थिंग कि जो स्टेक होल्डर्स हमारे होते हैं, उसकी भी इतनी सारी क्वालिटी नहीं है। स्टेक होल्डर्स अमेरिका में की कहीं ज्यादा बातें, जो भी यूनिवर्सिटी चलती है वो स्टेक होल्डर के पैसे से चलती है साहब, सरकार के पैसे से नहीं। देन सरकार को आपको पूछ के करना पड़ता है। वाइस चांसलर विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, वाइस टीचर्स विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये यूनिवर्सिटी है, सरकार की नहीं है, स्टेक होल्डर की है। मैंने अभी अहमदाबाद में कोई यूनिवर्सिटी शुरू कर रहे थे, उसको बताया कि आपके पास कितना पैसा है, तो ही सेड सब 700 करोड़ रुपीस है। मैंने 2000 कर दो, बाद में यूनिवर्सिटी शुरू। आपके टीचर्स कितना रखता है, कितना एक्सपांशन होगा आगे जाके, उसका इंटरेस्ट पैसे पैसा का पगार मिलना चाहिए। टीचर्स एब्सोल्युटली रीइंवेस्ट फ्रॉम योर दिस। बाकी आप फीस लेके रूटीन काम करते रहो तो ही बनेगा। सो यू हैव नॉट टू गो टू द गवर्नमेंट। और सेकंड थिंग कि हम जो करिकुलम चेंजेस वगैरह जो करना है ना, हमारे वहाँ इतना आसान नहीं है। 2 साल तक तो PhD का वाइवा नहीं होता है।
रेफरी का नाम लिखा तो पता चला कि रेफरी तो एक्सपर्ट हो गया है। रेफरी ऐसे भी होते हैं कि कई बार वो साहब मिला है थीसिस बट अभी देखा नहीं है, देखता हूँ करके 6 महीने लगा देंगे। सो इसमें बच्चे का जो स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन आता है दैट इज वेरी शेड। सो एक क्वालिटी ऑफ रिसर्च को करना चाहिए, पेटेंट को करना चाहिए एंड स्टेक होल्डर्स को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और सिस्टम ऐसी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि आपको IITs और IIM वाले सिलेबस फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं। हमारे वहाँ तो NCT बोलेगी 2014, अभी 2020 में आएगा तब सिलेबस चेंज होगा, और वो चेंज करने के लिए पूरा 1 साल निकल जाता है। पहले इट विल गो टू बोर्ड ऑफ स्टडी, सेकंड इट विल गो टू फैकल्टी बोर्ड, थर्ड इट विल गो टू एकेडमिक काउंसिल, फोर्थ इट विल गो टू सिंडिकेट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और वो भी एक्सेप्ट किया तो ठीक है, नहीं तो आपका जो भी इनोवेशन है चला गया। सो फर्स्ट थिंग इज द क्वालिटी ऑफ रिसर्च, सेकंड इज पेटेंट, and third is the teaching learning pattern and flexibility. If this is there, I think you will be able to go to the world class education. Thank you, sir. Sir, there is one more question. As per higher education is concerned, what is more important? Skill without degree and degree without skill? Asked by Ayushi Tiwari again. डिग्रीज तो चाहिए ही चाहिए। पहले पौंडीचेरी वाले भी डिग्री नहीं देते थे। आई थिंक और भी कुछ एडिट ऑफ विवेकानंद इंस्टीट्यूट है, वो लोग भी डिग्री नहीं देते थे। शांति निकेतन वाले भी डिग्री नहीं देते थे। बट हमारी सिस्टम इज सो रिजिड, मास्टर डिग्री विथ 55%, 1% कम वाला भी नहीं चलेगा, कितना भी अच्छा हो। सो दैट इज अवर सिस्टम। पहले टीचर्स की अपॉइंटमेंट हमारे बड़ौदा में महाराजा सयाजी राव थे। ये पूरा का पूरा जो विकास हुआ है बड़ौदा का, दैट फाउंडेशन गोज टू हिम। वो कहीं कहीं से जब यूनिवर्सिटी शुरू किया तो वो बाहर से पकड़ के लाते थे प्रोफेसर को। श्री अरविंदो को लेके आए, वो महर्षि अरविंदो को लेके आए, बाबा साहेब आम्बेडकर को लेके आए, उसको पैसा भी दिया आगे जाने के लिए। कहीं पूछा नहीं कि मास्टर डिग्री सेकंड क्लास है कि नहीं। जितना सिस्टम में आप इनपुट डालोगे ऐसे रिजिड, वहां तक होगा। और ये नहीं डालोगे तो मेरा चाचा भतीजा कोई भी आ जाएगा, तो व्हाट टू डू नाउ। सपोज यू सेड कि भाई मास्टर डिग्री में 55 नहीं होना चाहिए, तो किसी का भतीजा होगा वो आ जाएगा। सो स्कॉलरशिप, मेरिटोक्रेसी, एक शब्द यहाँ भी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी में भी लिखा है मेरिटोक्रेसी में, ये पूरा मेरिट वाला आदमी को लेना चाहिए जिसके पास कम है। बिकॉज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, लैंग्वेज कम्युनिकेशन, ये सब की एक्सपेक्टेशन है। तो इसीलिए ये सब बातों पे जोर देना चाहिए। बट रिजिडिटी तो सिस्टम में बहुत है। एक आदमी अच्छा से अच्छा गोल्ड मेडल है बट पढ़ाने में वो 0 है, लेकिन एक आदमी ऐसा है कि उसका 54% है बट ही इज वेरी गुड इन टीचिंग, तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिकॉज करप्शन। तो ये करप्शन जो निकल जाएगा सिस्टम से, तो हम हायर एजुकेशन में आगे बढ़ सकेंगे। Thank you so much, sir. I must say you have covered the wide scope of the challenges of higher education, or also suggested us the ways to overcome these challenges and turn them into our opportunity. And the most important thing you said in the beginning, that we should be optimistic and we should envision our higher education system, and we by self-awareness, by self-analysis, we can bring the higher education system in a most successful role. Thank you so much, sir. Now, we'd like to go with the second session. Before this, I would like to introduce Dr. Sangeeta ma'am. She has completed PG in Sociology from Ranchi University. They also received the UGC Research Fellowship Grant, awarded a DPhil degree from Allahabad University in 2001. She joined UP Higher Education Service in 2001. At present, she is working as a principal in Savitribai Phule Government PG College, Chakia, Chandoli. She is interested in political sociology, sociological theories and women studies. Number of research papers published in international national journal. She has presented so many research papers in national as well as international seminar, conferences and workshops. She authored the book on issues of political sociology as well as issues related to underprivileged section of the society. We welcome you, ma'am, and I would like to request you to take over the session from here. Thank you, Abha ma'am.
Am I audible? Yes, ma'am. Yes, You are ma'am. audible. Very good afternoon, everybody. आप सभी को मेरा नमस्कार. Respected Honorable Dr. Arna Palta ma'am, Honorable Ramesh Chandra Kothari sir, Dr. Prashant Srivastava sir, Mr. Mahen Chaube ji, Dr. Nazia Ahmed ma'am, Principal, Dr. Sandhya Pujari ma'am, Organizing Secretary of this webinar, and Dr. Abha Dubey ma'am, Convener of this webinar. And also मिस्टर रमाकांत प्रसाद, जिनकी वजह से हम सब लोग यहाँ एकत्रित हो पाए हैं और इतने अच्छे से इस वेबिनार को कंडक्ट किया जा रहा है. मैं सबसे पहले नाजिया मैम और आभा मैम को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म को शेयर करने का अवसर प्रदान किया. और निश्चित रूप से आज डॉक्टर अर्ना पाल्टा मैम और कोठारी सर से जो भी बातें हुई, उनके जो भी व्यूज पता चले, उन्होंने जो कुछ बताया वह निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है और सारे स्टूडेंट्स उससे लाभान्वित होंगे. अभी बहुत सारी बातें हुई. अर्ना पाल्टा मैम ने अभी जो वर्तमान स्थिति कोविड-19 के संदर्भ में चल रही है उसके संदर्भ में उन्होंने बताया, और इसके साथ ही कोठारी सर ने जितनी बातें बताई, और निश्चित रूप से वो सभी बातें आज के समय में हायर एजुकेशन सिस्टम में बहुत मायने रखती हैं, और उन सब के ऊपर निश्चित रूप से वे समस्याएं भी हैं, और उन्होंने जो बताया उन समाधान की ओर भी अगर हम ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम में प्रोग्रेस होगा. कोठारी सर ने ऑप्टिमिस्टिक होने की बात की, और ये वाकई ये जिंदगी के लिए भी बहुत बेहतर चीज है कि हम ऑप्टिमिस्टिक हों. लेकिन एक चीज जो यहाँ पे छूटी है, अभी जो बात नहीं हो पाई है और जिसपे आई वुड लाइक टू फोकस ऑन is the challenges that higher education is facing in rural India. Because I am in Chandauli and Chakia is a remote area, and as government जो कि भी सरकार के नियम हैं कि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेजेस बेसिकली दे आर सिचुएटेड इन रिमोट एरियाज टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन हु बिलोंग टू दोज प्लेसेस. तो क्योंकि मैं वहां को बिलोंग कर रही हूँ और वहाँ क्या समस्याएं हैं, इस पे मुझे लगा कि कुछ बातें होनी चाहिए. Education is essential for the progress and prosperity of both the society and nation. It enables an individual to look at society and its aspect with a wider perspective. Without education, people are not able to develop the basic sense required. It provides skills and development for effective employment in the future. India's higher education has shown significant development over the few decades. However, there are a number of problems plaguing our system of higher education, and one of them is disparity. Around 3/4 of the country's population belong to the rural area. With literate and educated rural Indians, our country might emerge as a developed nation. In India, population of young generation between 15 to 35 years age is increasing, and today more than 65% of the total population are of young generation. Approx 70% of Indian population is living today in rural areas. To turn this large number of young blood into productive human resources, proper education and skill-based training is compulsory. Educational institutions have that responsibility. As far as the report of All India Survey of Higher Education 2018-19, that is AISHE, is concerned, there are 993 universities.
कोठारी सर ने बताया कि समय समय पे विश्वविद्यालयों की संख्या में परिवर्तन होता रहा है, और AISHE की रिपोर्ट ने 993 यूनिवर्सिटीज बताया, 39,931 colleges and 10,725 standalone institutions in India, in which 60% colleges are situated in rural areas. While comparing global educational scenario with Indian educational institutions situated in urban areas in general and those situated in rural areas in particular, we found a huge gap. It is challenging to cope up with the recent innovation and technological changes for higher education institutions. There are so many issues, challenges, obstacles in front of higher education institutions which are situated in rural area, and I have to focus on some of them. एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो that is the lack of adequate quality institutions. There exists a lot of disparity between the rural and urban area. In the village, a number of colleges are situated in remote, backward and hilly area. In addition, there is almost total absence of technical higher education institutions in rural areas. इसके साथ ही एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग देखते हैं रूरल बेल्ट में, वो है that is the problem of dropouts. The dropout rate refers to the percentage of students failing to complete a particular college or school course. It simply means leaving a school, college, or university for practical reasons, necessities, or disillusionment with the system by an individual without completing the prescribed course of study. In India, as the school dropout is above average, very few children seek higher education. Even during college life, factors such as burden of family, poor infrastructure facilities, lack of monetary support, and wrong attitude towards higher education result in high dropout rates. इसके बारे में क्योंकि हम लोगों का अपना अनुभव रहा है कॉलेजेस में, कई बार जब मेरिट लिस्ट निकलती है और बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं, फिर जब लास्ट डेट आ जाती है और हम लोग उनसे पूछते हैं कि भाई उनको फोन करवाते हैं कि क्यों नहीं तुमने एडमिशन लिया, आके मिलो कल। जब वो आके मिलते हैं तो उनकी बात सुन के अच्छा नहीं लगता है कि रूरल एरिया में अभी इतनी समस्याएं हैं। वे बच्चे बताते हैं कि मैडम फीस देने के पैसे नहीं थे, फीस देने के पैसे नहीं थे इसलिए नहीं आए क्योंकि एडमिशन लेते तो फीस देना पड़ता, क्योंकि बिना फीस दिए एडमिशन कंफर्म नहीं होती है। तो ये चीज क्योंकि जो लोग शहरों में रहते हैं या जो अर्बन कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस हैं, वे शायद वहाँ शायद इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं समझ में आता है। लेकिन जब हम लोग गांव में इन बातों को देखते हैं और कोई इंटेलिजेंट बच्चा, कोई ऐसा बच्चा जो सिर्फ फीस की वजह से एडमिशन नहीं ले पा रहा हूँ, इसमें एक हम अपना एक अनुभव शेयर करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पीजी में बहुत कम सीट्स हैं, 60 सीट्स हैं पीजी लेवल में। तो हमने एक नियम बनाया, हमने कहा कि क्योंकि हमारे यहाँ मेरिट पे एडमिशन होना है और आई हैव टू एडमिट ओनली दोज स्टूडेंट्स हु आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, तो हमने ये कहा कि हम क्लासेस शुरू करते हैं मेरिट लिस्ट निकलने के बाद, और आप लोग आइए और दोज हु आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन एडमिशन आप यूनिफॉर्म बना के आइए। जब हम देखेंगे कि आप 15 दिन यूनिफॉर्म में आपने रेगुलर क्लास अटेंड किया है तो हम आपको एडमिट कर लेंगे। आपका यूनिफॉर्म में आना ही इस बात के लिए का हम लोगों को सेटिस्फैक्शन देगा कि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। तो बच्चों का एडमिशन हुआ मैम 10 अगस्त तक। 15 अगस्त को हम लोगों ने एक फ्लैग होस्टिंग के बाद एक प्रोग्राम रखा जिसमें प्लांटेशन का प्रोग्राम रखा। तो प्लांटेशन के लिए बच्चे बहुत सारे ढेर सारे पौधे लेके आए थे। एक लड़की जो
3-4 पौधे लेके आई थी, मैडम मैं भी पौधे लगाऊंगी। और रूरल बेल्ट के बच्चे इस तरीके से बहुत ही मतलब शौक, बहुत ही शालीन और बहुत ही सिंपल होते हैं। वो खुद ही फावड़ा उठाते हैं, वो खुद ही बाल्टी लेते हैं, वो खुद ही मग लेते हैं, वो खुद ही गड्ढा करते हैं, मतलब सारा कुछ वो खुद कर लेते हैं। दे डोंट नीड एनी हेल्प। तो वो करने लगी जब, तो हमने कहा कि अच्छा तुम किस क्लास में हो? पीजी में हो? क्योंकि उसका चेहरा जाना पहचाना था। बोली नो मैडम, मेरा तो एडमिशन ही नहीं हुआ है। हमने कहा क्यों? बोली मैडम मेरा एडमिशन नहीं हुआ है, फीस थी नहीं, तो मैंने यूनिफॉर्म बनवा लिया है, मैं रोज अटेंड करूंगी क्लास, उसके फिर प्राइवेटली मैं एग्जाम दे दूंगी। तो उसकी ये बात सुन के एक बहुत मन को ये लगा कि देखो एक अच्छा बच्चा जो रेगुलर क्लास आता है, लेकिन क्यों उसके पास मॉनेटरी प्रॉब्लम है, इसलिए वो अटेंड नहीं कर पा रहा है। फिर मैंने उसके लिए व्यवस्था की कि नहीं तुम्हारा एडमिशन होना चाहिए जब तुम इतनी रेगुलर हो, और फिर उसका एडमिशन हुआ। तो इस तरीके से चीजें हैं जो रूरल बेल्ट में बच्चों के लिए एक समस्या हैं, जिन पे हम लोगों को सोचना आवश्यक हो जाता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बैरियर है जो टेक्निकल कॉलेजेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, दैट इज द हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ पास ही में बनारस है, लेकिन बच्चों को अगर हम बनारस भी जाके बोलते हैं कि तुम जाओ बनारस वहां एडमिशन ले लो, तो बोलते हैं मैडम वहां रहने की असुविधा होगी, हमारे घर के लोग पे नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ें जहां फीस कम होती है। इसके साथ ही जिस चीज को रूरल कॉलेजेस या रूरल इंस्टीट्यूशंस और ज्यादा फेस करते हैं, दैट इज द लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। That includes college building, administrative offices, library, playground, laboratory, ICT equipment, furniture, fitting for colleges. With this, salaries for the teaching and non-teaching staff and fund for academic and development activities, sanitary, water and sanitation, etc. are required. It is not easy to establish and maintain all these things without fund. Most of the rural higher education institutions do not have sufficient source for the things without fund. And central and state government has limits on offering grants. In India, 63% colleges are private and unaided, in which most of the colleges are located in rural area. Government grants and the scheme are mostly for aided colleges and are not enough to reach the global standard. The students belonging to the rural area often come from lower income families as they are unable to pay minimum fees. It is a great challenge in front of rural higher education institutions to provide educational services in minimum fund. एक और बहुत महत्वपूर्ण जो समस्या हम लोगों को डे टू डे लाइफ में दिखाई देती है, दैट इज द पुअर एजुकेशनल अवेयरनेस। शायद हम लोग जो शहरों में रहते हैं या बड़े कॉलेजेस में होते हैं, उनको ये नहीं एहसास होता है कि अभी भी रूरल बेल्ट में एजुकेशनल अवेयरनेस के मामले में लोग बहुत सीमित सोचते हैं, और वह सीमा और कम हो जाती है जब हम लड़कियों की बात करते हैं, गर्ल्स चाइल्ड की बात करते हैं। Rural population in India is mostly illiterate and deeply covered with the mentality of not giving importance to girls' education. It has great impact on social and cultural foundation. Students belonging to rural areas are mostly inattentive about career and importance of education. Most of their parents or guardians are illiterate. Cultural and economic environment, or a combination of the two, may reduce the effect of class attendance on academic performance. Especially in rural areas, more than 50% of the students remain absent in the classroom during the sowing season in the fields, as they come from the farmers and the landless laborers' families. And again, in the season of harvesting, the classrooms are vacant. तो ये हम लोगों की ये एक प्रैक्टिकल जो हम लोग देखते हैं डे टू डे एवरी ईयर,
कि जब फसल लगाने का समय आएगा तो कॉलेज खाली हो जाएगा, जब फसल काटने का समय आएगा तो कॉलेज खाली हो जाएगा। तो बच्चों को हम रोक नहीं पाते हैं क्योंकि वो वही अपने घर में भी हेल्प करने वाले हैं। तो और अगर वो पेरेंट्स की हेल्प नहीं करते हैं तो फिर उनके फसल का क्या होगा, और उनके फसल पे ही उनके साल भर की लिविंग रहती है। इसलिए हम लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, वो बताते हैं कि मैडम फसल काटना है और इसके लिए 1 हफ्ते का समय लगेगा मैडम, हम लोग नहीं आ पाएंगे। और ये खाली बॉयज के साथ ही नहीं है, ये गर्ल्स के साथ भी है कि जब पौधे लगाने होंगे फसल उस समय, जब काटने होंगे फसल उस समय। तो बल्कि हम लोग बोलते भी हैं कि तुम लोगों के 6 महीने तो इसी में निकल जाते हैं, कभी फसल लगती है कभी फसल कटती है, तो हम लोग जब तुम रहोगी नहीं तो हम क्लास किसकी लेंगे। लेकिन उनकी अपनी मजबूरी है और उस मजबूरी को हमारे लिए समझना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उसके अलावा और कोई उनके लिए चारा नहीं होता है। The annual teaching plan prepared by the teachers are not much helpful in carrying out the process of teaching and evaluation in practice. Conditions such as poverty and lack of awareness about the importance of education among the parents are the reason for rural children remaining out of the purview of the educational system. एक और बात जो शेयर करना चाहेंगे, जब लड़कियों की बात आती है, जब लड़कियों की एजुकेशन की बात आती है, हम लोगों के यहाँ जब स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, हम लोगों ने ये एक बाउंडेशन लगा दिया कि हम एडमिशन तभी करेंगे आपका जब कैंडिडेट अवेलेबल होगा। क्योंकि हम लोगों का अनुभव ये रहा कि जो लड़कियां होती हैं उनको पेरेंट्स कॉलेज आने के लिए बहुत ज्यादा इनकरेज नहीं करते। उनको ये रहता है कि आप घर में बैठिए, भाई आपका जाके एडमिशन करा देगा, भाई एडमिशन भी करा देगा, उसके बाद फिर भाई एग्जामिनेशन ये भी लेता आएगा, आप सिर्फ एग्जामिनेशन के समय आइएगा। तो हम लोगों ने ये कहा कि नहीं, विदाउट कैंडिडेट हम लोग काउंसलिंग ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक बार देखें तो कि आप कौन हैं जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो जब हमने ये बाउंडेशन लगाई तब लड़कियां खुद आने लगी। और एक बहुत मजेदार चीज है कि बीए में एडमिशन करने गर्ल्स आती हैं, तो गर्ल्स बाहर क्लासरूम के खड़ी रहती हैं, उनके सारे ये सर्टिफिकेट्स वगैरह लेके कोई लड़का काउंसलिंग कराने अंदर आता है, या वो काउंसलिंग कराने अंदर आएंगे भी तो उनके सारे रिपोर्ट्स वगैरह, सर्टिफिकेट, मार्कशीट उस लड़के के हाथ में रहेंगे। तो हमने देखा कि एक छोटा लड़का है जो ये सारा कुछ कर रहा है, बहन शायद बड़ी है। तो हमने उससे पूछा कि भाई तुम किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? तो उसने कहा कि मैडम मैंने अभी इंटर में एडमिशन लिया है। तो हमने कहा कि तुम इंटर में एडमिशन लिए हो बेटा, और तुम बीए में अपनी दीदी का एडमिशन करा रहे हो। तो ये एक हम लोगों की साइकोलॉजी है कि गर्ल्स को थोड़ा सा हम ये लगता है कि धूप पानी ना लगे उन सबको, वो सब सेफ सिक्योर बनी रहें। और उनका भाई चाहे वो मैट्रिक में हो चाहे इंटर में हो, वो ज्यादा एलिजिबल है बाहर की चीजों को करने के लिए। जब ऐसी कंडीशन हमने देखी तब हमने इस बात पे रोक लगाई कि नहीं, अगर आपके साथ आपके भाई आए हैं, आपके पेरेंट्स आए हैं, तो दे हैव टू स्टे आउटसाइड द क्लासरूम, और आप इंटर कीजिए विथ ऑल योर सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट और अपनी काउंसलिंग कराइए। और उसके साथ हम लोग उनको ये भी काउंसलिंग करते हैं कि इससे आपका थोड़ा मोरल बूस्टअप होगा और आपको थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा कि आप बाहर चीजों को कैसे फैकल्टीज। One of the major issue of concern is the absence of qualified faculties in rural higher education institutions. One of the prerequisite conditions for quality education is the existence of adequate and qualified faculty. Qualified teachers always prefer better institution in terms of input, standard teacher-student ratio, enhanced physical facilities, healthy work environment, etc. ये हमारे आपके सबकी सोच है कि जब हम कहीं भी रहेंगे तो ऐसी जगह रहेंगे जहाँ पे हमारे बच्चों को भी पूरी सुविधा मिले, वो चाहे एजुकेशनल सुविधा हो चाहे वो एकेडमिक सुविधा हो, वो मिले।
तो जब हम इन चीजों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम रूरल बेल्ट में काम करना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अब हम लोग क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट जॉब में होने की मजबूरी है कि हम खुद भले ही चकिया में रहें लेकिन हमारे बच्चे बनारस, इलाहाबाद कहीं बाहर पढ़ें। तो जब जिनके बच्चे छोटे हैं उनको हमेशा मेडिसिनल या डॉक्टर की जरूरत होती है, और ऐसी जगह जहाँ पे आप 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी रहते हैं, वहां आप नहीं सोच सकते कि आपको तुरंत मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब फैकल्टीज जो हैं वो बहुत अच्छी नहीं मिल पाती हैं रूरल बेल्ट में। This restrict competent and qualified faculty from seeking employment in rural areas. 63% colleges are unaided and unable to pay adequate salary. Therefore, qualified teaching faculties are not inclined to work there. About 40% of college teachers are working on temporary basis. ये एक नई व्यवस्था है जो लगातार चली आ रही है। Most of them do not have minimum eligibility, that is NET, SET or PhD. और क्योंकि जब उनके पास वो सारी अभी कोठारी सर से बात हो रही थी, तो ये जरूरी नहीं है कि जिसका 55% नहीं हो वो अच्छा टीचर ना हो, लेकिन जो बाइंडिंग है गवर्नमेंट की कि भाई नेट होना ही चाहिए, सेट होना ही चाहिए, पीएचडी होनी ही चाहिए, ये बाइंडिंग एक जो नेसेसिटी है वो तो कंप्लीट होनी आवश्यक है। Governments stop recruiting teacher for long period of time to reduce expenses. ये समस्या हम हर स्टेट में देख रहे हैं कि जहां अपॉइंटमेंट्स की बात आती है, बहुत कम ही अपॉइंटमेंट हम देख पा रहे हैं कि एवरी ईयर रेगुलर अपॉइंटमेंट की तो समस्या बहुत ज्यादा है। और एक और बहुत बड़ी चीज है, many institutions show the teacher working on paper. कि जब आप देखते हैं बहुत सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे जहां आप पेपर पे देखते हैं कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, जब आप ऑन द स्पॉट जाते हैं तो आपको एक भी नहीं मिलते हैं। तो वो नाम चलता है, वो 1 कॉलेज 2 कॉलेज 3 कॉलेजेस में नाम चलता रहता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। और जब ऐसे में बच्चे जाते हैं तो निश्चित तौर से उनको कोई एकेडमिकली उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो पाती है। It has direct effect on the quality of student. इसके साथ ही inadequate infrastructure की भी समस्या है कि उनके पास क्लासरूम्स नहीं है बेहतर, फर्नीचर नहीं है बेहतर, सेमिनार्स हॉल्स नहीं है बेहतर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं है बेहतर। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम रूरल बेल्ट में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे बच्चे क्योंकि आर्मी के लिए, पुलिस के लिए ये सारी तैयारियां करते रहते हैं, तो इन सारी तैयारियों के कारण वो फिजिकली बहुत फिट होते हैं और गेम्स में वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उनको बहुत ज्यादा शार्प नहीं कर पाते, हम उनको बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं होती है, गेम्स के प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, फील्ड नहीं होती है, कायदे के टीचर्स नहीं होते हैं। इसके कारण उनकी जो क्षमता है, उनकी जो एबिलिटी है, वो वहीं पे रुक जाती है। अगर हम उनको बेहतर इक्विपमेंट्स दें, हम उनको बेहतर ट्रेनर दें, तो निश्चित तौर से ये बच्चे आगे जाके अच्छा करेंगे। और ये सिर्फ बात की नहीं, ये मेरा अपना अनुभव रहा है कि हमारे पास बच्चे हैं ऐसे हमारे कॉलेज में जो कि पैरा ओलंपिक में गए हैं, नेशनल में गए हैं, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम हैं। ज्यादातर ये होता है कि वो उन बच्चों के अंदर कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो चाहते हैं, लेकिन हम उनको प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। इसके साथ ही एक चीज है कि रूरल बेल्ट में लोगों का एडॉप्शन प्रोसेस बहुत स्लो है, डिले इन अपडेट एडॉप्शन। This is the era of globalization and the whole world has become a global village. Industrial and corporate world is changing fast. Technological, regulatory, environmental, cultural, social, political and many fields are changing day to day.
Indian rural higher education institutions have lengthy procedure to adopt the daily changes in society. It creates gap between the fact and prescribed boundary of syllabus. कि जो चेंजेस हो रहे हैं, हम एक यूनिवर्सल सिलेबस की बात कर रहे हैं. हमने सेमेस्टर की बात की. हमारे यहाँ यूपी में कॉलेजेस में सेमेस्टर लागू हो गया है पीजी में, लेकिन पीजी में सेमेस्टर्स में जो पेपर्स हैं वो हम जब देखते हैं तो वो नेशनल लेवल के पेपर्स हैं, और हमारे रूरल बेल्ट में बच्चों को उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं हो पाता है. हम लोग हर जगह से मटेरियल अवेलेबल कराते हैं, हम मटेरियल लेते हैं, उनको ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल कराते हैं, हम खुद से सीडी बना के उनको दिखाते हैं या कॉलेजेस में. लेकिन ये एक समस्या है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि ये जनरल बात है, लेकिन कुछ बच्चे अडॉप्शन में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ज्यादातर क्योंकि उनका माइंड ही उस तरीके से चलता है, उनकी सोच ही उस तरीके से चलती है. एक ये सोच कि ये पढ़ के हम क्या करेंगे, क्योंकि उनका जो सेटअप है अपने घर का, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, वो जब हम ग्रामसी की बात करते हैं, हम अल्थुजर की बात करते हैं सोशियोलॉजी में, तो ये चीजें उनको लगता है कि ये हम पढ़ के क्या करेंगे, इसका हमारे डे टू डे एक्टिविटी में, डे टू डे लाइफ में क्या जरूरत है. तो मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं वो इसी थॉट प्रोसेस के हैं. लेकिन अब क्योंकि वो एक यूनिवर्सल सिलेबस है और वी हैव टू टीच देम, हमको उनको पढ़ाना ही है, उनको ये पढ़ना ही है, उनको लिखना ही है, तो थिंग्स आर गोइंग ऑन एज. एक और चीज जो समस्या आती है वो है कि लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूट्स. जो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि जहाँ पे हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज आते हैं बच्चों के लिए, लेकिन उसके लिए कोर्स भी वैसे होने चाहिए. गवर्नमेंट कॉलेजेस में जनरली ऐसे कोर्स नहीं देते हम लोगों के यहाँ जिसमें कि बहुत ज्यादा फंड की जरूरत हो. तो ऐसे हो जिनमें लैब की जरूरत ना हो, तो वो बहुत अच्छा है, ताकि लेस एक्सपेंसिव चीजें हो जाएं. Human resources are required in government and private sectors. Most of the higher educational institutions do not have link with the demanding industry of their respective field to get update information of required human resource. We found that so many engineering, D.Ed and B.Ed institutions newly established in India in last decades are now in sick condition due to lack of enough enrollment. The reason behind is the economic law of demand and supply, जिस बात की चर्चा कोठारी सर कर रहे थे. Sudden hike of institutions increased supply of engineers and teachers more than demand, and now the demand is completed and supply is still continuous. Thus, these fields are facing saturation and recession. इसके साथ एक और समस्या हम देखते हैं वो है क्वालिटी की. There are severe quality constraints in rural education. According to National Association of Software and Service Companies report of 2005, just 15% of graduate of general education and 25 to 30% of technical educations are employable. This could be attributed to the following factor. क्योंकि डिग्री पा लेना और उसके लायक होना, ये दोनों दो बात हैं. हमारे यहाँ ज्यादातर ये होता है कि डिग्री पाने पे ज्यादा इम्फेसिस है कि आप उससे कितना लाभ लेते हैं, आप कितने उसके लायक हैं, इस बात पे लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते. और जब कंपनीज में भी या इसमें भी हम देखते हैं कि अगर आपके पास डिग्री है तो कंपनीज आती जरूर हैं, लेकिन जब वो आपको टोटल ग्रिल करती हैं तो वो पाती हैं कि नहीं, यू आर not eligible, you are not capable of doing job in their companies. तो ये बात होती है कि अगर हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित तौर से हम उनको ऐसा पढ़ाएं कि वो आगे अपने कैरियर को लेके या आगे किसी बेहतर अपने जीवन में बेहतर करने के लायक बने. लेकिन सिर्फ ये कि हम उनको MA करा दे रहे हैं, हम उनको BA करा दे रहे हैं, और रूरल बेल्ट में तो एक आप लोगों को ये भी एक अजीब सी चीज लगेगी, लेकिन निश्चित तौर से जो अनुभव है
कि लड़के जब एमए कर लेते हैं तो एमए लड़का एमए कर रहा है, इट मीन्स कि उसकी वैल्यू सोसाइटी में मैरिज के लिए अच्छी है। यहाँ लड़का एमए कर रहा है तो अब उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, अब वो डाउरी के लिए ठीक है, उसको दिया जा सकता है कि वो एमए कर रहा है। हमें ये सोच के अभी शायद लग रहा होगा कि हम सिटीज में इन सब बातों पे अभी नहीं कि भाई एमए क्या है, लेकिन गांव में अभी भी इस बात की वैल्यू है कि अगर लड़का एमए कर रहा है तो वो एक इंटेलिजेंट लड़का है और वो जीवन में अपने कुछ ना कुछ आगे कर ही लेगा। तो कई बार हम लोग लड़कों से पूछते भी हैं कि भाई एमए क्यों कर रहे हो तुम, पीजी क्यों करना चाहते हो तुम, तो बोलता है कि मैडम पढ़ने का तो मन नहीं है लेकिन घर वाले कहते हैं कि कर लो, क्योंकि हम लोगों को भी बताने को रहेगा कि लड़का एमए कर रहा है, लड़का कुछ नहीं कर रहा है, इससे अच्छा है कि लड़का एमए कर रहा है। तो हायर एजुकेशन में ये चीज से एक बहुत बड़ी समस्या है कि सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाई करना, सिर्फ डिग्री के लिए कॉलेज जाना, और जब ऐसे बच्चे आते तो निश्चित तौर से वो अनअटेंटिव रहेंगे, निश्चित तौर से वो एब्सेंट रहेंगे, निश्चित तौर से वो चीजों को फॉर ग्रांटेड लेंगे, और तब ऐसे बच्चों को पढ़ाना या ऐसे स्टूडेंट्स के साथ डील करना एक निश्चित रूप से एक चुनौती होती है। Quality norms cannot be maintained by these institutions. Indian system in the rural areas lags way behind in terms of quality. Criteria have to be laid down to evaluate the quality. Absence of stringent enforcement process. It is very easy to lay down different policy decisions. What is more important, however, is that they have to be enforced, and India lacks a stringent enforcement process. भाई आपने जो अभी बात हुई थी, सीबीसीएस की बात हुई या सेमेस्टर की बात हुई, उसको हम लागू कर देते हैं, लेकिन उस लागू करने में कितना हम इफेक्टिवली लागू करते हैं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है, क्वेश्चनेबल बन जाता है। इसके साथ अभी जो पाल्टा मैडम के साथ बात उन्होंने कहा, अब एक नई समस्या आ गई है जो हम लोग अब देख रहे हैं, ऑनलाइन की बात। अब ऑनलाइन की बात है तो ऑनलाइन चीजें अच्छी भी हैं और नहीं भी अच्छी हैं, क्योंकि जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो गांव में जहां नेटवर्क ही नहीं है, जहां पूरे घर में एक मोबाइल है और 4 बच्चे हैं, वहां ऑनलाइन क्लास कैसे चलेगी? क्योंकि निश्चित तौर से जब बच्चे वो बारी बारी से एक बच्चा लेगा मोबाइल, तो ये होता है, हम लोग खुद बोलते हैं कि भाई तुम लोग एब्सेंट थे, जब हम ऑनलाइन क्लास चल रहे थे तो तुम लोग नहीं थे। तो ये एक बच्चों के साथ प्रॉब्लम है कि उस घर में सिर्फ वही बच्चा डिजिटली जान रहा है चीजों को, और एक ही मोबाइल है और उसी को करना है। दूसरी बात है कि टीचर्स भी अब जैसे जैसे सिस्टम में हम लोग आ रहे हैं वैसे वैसे हम सब सीख रहे हैं चीजों को, क्योंकि अभी तक हम लोग इस बात के लिए नहीं सोचे थे कि भाई ऐसी भी चीज हो सकती है, ऐसे भी ऑनलाइन क्लासेस हो सकते हैं। लेकिन अब निश्चित तौर से हम लोगों को भी इसमें आगे आके काम करने की आवश्यकता है और हम लोग कर रहे हैं काम, लेकिन रूरल बेल्ट में अभी चीजों को बदलने में थोड़ा समय अभी लगेगा। अब हम क्या इसमें कर सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। With the entry of globalization, along with liberalization and privatization, there is urgent need for making available various policies, programs, and facilities in higher education, and that requires giving equal attention to the rural areas. It is therefore essential that we take a feedback from the rural students about the awareness and utilization of facilities introduced from time to time, as also to check the status of the availability of these facilities in the institution where they are enrolled. As seen earlier, Indian system of higher education has increased by leaps and bounds, but unfortunately, it has not been accompanied by improvement in the quality imparted. The situation is worse in the rural areas. All plans for expansion must lay emphasis on improving the quality of education. In this context,
One can mention the need of establishing high-quality higher educational institutions with respect in general education, professional education and agricultural college in rural areas. Care must be taken to develop a skill of teachers for improving teaching learning transaction, creating a conducive academic environment, improving infrastructure, and introducing technology-enabled learning wherever possible. Financial poverty is an important affecting higher education in general and rural education in particular. With increasing demand for higher education, the government may not be in a position to take care of all the needs. Therefore, steps have to be taken to supplement government effort. Keeping in mind the humble background of rural students, efforts have to be made to provide education available at subsidized rates. This will help in addressing two crucial issues, namely access and equity. The most important task is that of tackling the problem of rural dropout. This calls for creation of a social awareness of the advantage of seeking and completing higher education and its repercussion on the future generation. A sense of awakening has to be generated where the rural population is made to realize the significance of female education and the resulting employment prospect. This will help us in tackling the two basic problems of poverty and population explosion. Research plays an important role in the economic development of any country, and rural higher education is no exception to the rule. Providing for comprehensive study and innovation is a necessary ingredient of progress of a nation. Therefore, the need arises for the establishment of research centers in the rural areas. Thank you, ma'am. Thank you, Abhaji. Thank you so much, ma'am. You have covered most of the topic, or I think you lived the challenges. Actually, you lived the challenges of rural background, rural education, and you also very well knew what problem the student faced in the rural area. Ma'am, कुछ जी questions पूछे गए हैं. I would like to ask you. What are the possible consequences of COVID-19 on higher education in relation to rural education, rural area? हाँ, कोविड-19 के संदर्भ में मैंने इसकी चर्चा की कि कोविड-19 के बाद जब स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, तो बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक हम और आप अपने घर में भी देख रहे हैं, जो ऑनलाइन टीचिंग की बात हुई। हमारे अपने बच्चे भी मैडम ऐसा है कि जब 8 बजे से क्लास है तो 8 बजने में 5 मिनट पे उठते हैं। और वो जिस पोजीशन में है उन्होंने ऑन कर दिया, अटेंडेंस हो गई। मेरी बेटी डीपीएस में है, तो ये मेरा अनुभव है। तो ये है कि वो बच्चे जो कॉलेजेस आते थे, जो समहाउ इरेगुलर ही सही वो आते थे कॉलेज, तो उनको कुछ ना कुछ कॉलेज से उनको कुछ नॉलेज, कुछ एक्सप्लोरेशन कुछ ना कुछ उनको मिलता था हम लोगों से। लेकिन अब जब वो घर में बैठ गए हैं कोविड के कारण, तो निश्चित तौर से वो अपने उसी घरेलू वातावरण में हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे हैं जो कि कॉलेज आते थे तो वो लाइब्रेरी का यूज करते थे। वो कम से कम लाइब्रेरी में बैठते थे, स्टडी रूम में बैठते थे और चीजों को लेते थे, क्योंकि जो उनकी मॉनेटरी स्थिति है उसमें वो बहुत ज्यादा किताबों को लेने में या खरीदने में पॉसिबल नहीं हो पाता उनके लिए। तो कोविड-19 के संदर्भ के आने के बाद वो जब बिल्कुल अपने घरों में कैद हो गए हैं, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पढ़ाई से उनका नाता टूट गया। जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में अटेंडेंस मैडम बहुत प्रॉब्लम है रूरल बेल्ट में। अटेंडेंस बहुत, कभी आपको शुरुआत हमने की थी तो हमने मस्ट किया था, तब उस समय 20 बच्चे 25 बच्चे आते थे आउट ऑफ द 60, फिर वो 15 हुआ, फिर वो 10 हुआ, फिर वो 5 हुआ। तो अटेंडेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लासेस में। तो ये लगता है कि कोविड-19 ने निश्चित तौर से उनके स्टडीज को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है।
Ma'am, there is one more question. It is related Yes, to ma'am. national policy on education. Yes, ma'am. It is asked by Yogita Talukar, ma'am. She asked how national policy of education is effective in rural higher education development. The effectiveness of national policy on education for developing a rural higher education system. रूरल हायर एजुकेशन सिस्टम में मैडम, अब जब हम लोग जाते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ, तो जो ड्रॉप आउट्स की प्रॉब्लम थी, भाई बच्चे नहीं आते थे, तो अब कम से कम अगर उनको ये सुविधा मिलती है कि आप फर्स्ट ईयर के बाद फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप सेकेंड ईयर के बाद भी आपको कुछ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको थर्ड ईयर के बाद भी कुछ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो निश्चित तौर से जो बच्चों के डिसकंटिन्यूटी थी, जो बच्चों के ड्रॉप आउट्स हो जाते थे, उनकी पढ़ाई छूट जाती थी, इस चीज को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा उनके ऊपर। अगर वो नहीं, उनको वो सुविधा है मॉनेटरी या एनी हाउ, तो कम से कम वो आगे इसको कैरी ऑन कर पाएंगे अपने एजुकेशन को। Thank you, ma'am. Ma'am, there is one more question. What is the difference between equality and equity? अच्छा जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो इक्वालिटी हम सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एवरीथिंग इक्वालिटी की बात करते हैं। समानता की बात करते हैं तो सामाजिक समानता भी होती है, आर्थिक समानता भी होती है। और जब इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी का मतलब है कि हम उनको एक ऐसे लेवल में लाके रख देते हैं जहां कि वो उनका एक्सेस होता है चीजों के साथ, वो चीजों को वहां तक वो पहुंच जाते हैं। तो इक्वालिटी की बात हम पूरे होल स्फीयर में करते हैं, लेकिन इक्विटी की बात करते हैं कि हम जिस चीज के बारे में बात करें उस चीज में हम उनको वहां तक लाने में आई एम कैपेबल टू ब्रिंग देम टू दैट इक्वल पोजीशन। Okay, ma'am, there is one more question I would like to end this session with this. अगर रूरल बेल्ट में स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एक्सेस नहीं मिल पा रहा है क्लासरूम का, तो व्हाट अ टीचर कैन डू, हाउ टीचर कैन हेल्प देम? तो हम लोग तो कर ही रहे हैं उनको हेल्प, हम लोग कर रहे हैं उनको हेल्प कि अभी आप लोगों ने सुना होगा रूसा का नाम, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा यूजीसी का एक प्रोग्राम है रूसा। उससे बहुत सारे कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए फंड्स आए, तो बहुत सारे कॉलेजेस में हम लोगों को वो फंड्स आए स्मार्ट क्लास डेवलप करने के लिए। तो अब हमने उसको ये किया कि स्मार्ट क्लास के थ्रू हम पढ़ाएं, और पढ़ाने के साथ जो बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो पाते हैं वो तो ठीक है, वो कनेक्ट हो गए, लेकिन जो बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं उनके लिए हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग करके हम उनको सिर्फ ये बोलते हैं कि भाई तुम पेन ड्राइव ले आओ, हम तुमको वो रिकॉर्डिंग दे देंगे, और अगर तुमको फिर भी सुविधा नहीं होगी तो हम ऐसी सुविधा अवेलेबल कराने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, जहाँ की एक आसपास अगर 2-4 बच्चे हैं और एक लैपटॉप है, भाई लैपटॉप हम लोग सोच सकते हैं कि लैपटॉप कोई लग्जरी नहीं है, लेकिन उनके लिए लैपटॉप अभी भी लग्जरी है। तो एक लैपटॉप है तो आपके पास पेन ड्राइव है, हम आपको चीजें अवेलेबल कराते हैं, आप पेन ड्राइव में साथ बैठ के देखिए, साथ बैठ के देखिए, तो कम से कम कुछ समस्या तो सॉर्ट आउट हो पाएगी मैम। अब है, समस्याएं बहुत सारी हैं और रूरल एरिया में, लेकिन अब ठीक है, चीजों को कोप अप ऐसे ही किया जा रहा है। नहीं मैम, आप लोग आई मस्ट अप्रिशिएट मैम, you shared your experience about the problem and challenges you faced in rural area as a principal of Savitri Bai Phule College. And ma'am, there is one more question. What is holistic approach in higher education? For rural belt? Yes, ma'am. In general, if you like to throw light on it.
holistic, मतलब I didn't get it in fact. Okay, ma'am. हाँ. Okay, that's it, ma'am. You already have covered most of the challenges and problems faced by the rural higher education system. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to give my vote of thanks on behalf of entire Sandipani Academy. And I must say, we are before time. We are on before time. We completed all the sessions because we started all the things on time. Even we started 15 minutes before. Therefore, we are 15 minutes before we completed this session. I, Dr. Abha Dubey, on behalf of entire Sandipani Academy fraternity, extend a very hearty vote of thanks to Honorable Dr. Anuna Palta ma'am, today's chief guest, and our mentor, Dr. Prashant Srivastava sir, DSW Hemchand Yadav University, for giving us their prestigious time, guidance, and motivation. I must mention my deep sense of appreciation for today's keynote speaker, Honorable Dr. Ramesh Chandraji Kothari, for his remarkable explanation on the topic. I also extend a big thank to our keynote speaker, Dr. Sangeeta Sinha ma'am, to enlighten us with the excellent coverage of the topic regarding problem and challenges of higher education in rural belt. We are all inspired by your great words on this topic. I also wish to express my gratitude to the Director of the College, Sri Mahendra Chaube sir, Administrator, Mr. Vinik Chaube sir, Principal Dr. Nazia Ahmed ma'am, HOD Dr. Sandhya Pujari ma'am, and entire team Sandipani for their constant encouragement and support for making this webinar a huge success. I also like to thank Mr. Ramakant sir, our moderator. Without him, we could not make this webinar, could not reach this end of this webinar. Thank you so much, sir. Last but not least, we also would like to acknowledge our gratitude to all the participants, online viewers of YouTube to make the program a huge success. I must mention here we have got participants from across the country, from Kashmir to Kanyakumari, as well as international participants, mostly from Philippines, Saudi Arabia, Indonesia, Kuwait, Bahrain, Morocco, Iraq, Bangladesh, Thailand, and many more. I'm also very grateful to all the dignitaries and all the person who involved in this webinar to make it a huge success. Thanks, thank you all. I request Ramakant sir to stop the live streaming of this YouTube video, and before stop it, please share the feedback link, sir. Thank you, madam. We have already shared the feedback link, and I am going to stop the live streaming. Thank you, madam. Thank you. Thank बहुत अच्छा रहा. स्ट्रीमिंग रुक गई है तो हम लोग बात कर सकते हैं. नहीं, आभा जी ने बहुत इनिशिएटिव लिया. बहुत ही संगीता मैम, आपका जो कहना है ना, वो बहुत रियलिटी आने जो आपने